तो कुछ आर्टिकल्स यहाँ पे हैं. फॉर इंस्टेंस ये आर्टिकल जो है ये फोकस कर रहा है प्रोपेगेंडा थ्योरी के ऊपर, दैट फोकस ऑन यू नो के how the theory has been changing and developing over a period of time. यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये लिखा हुआ है पॉलिटिक्स, प्रोपेगेंडा एंड फिल्म फॉर्म. ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि प्रोपेगेंडा थ्योरी को इस्तेमाल करके या पॉलिटिक्स और प्रोपेगेंडा को लेके दिस इज एन आर्टिकल ऑन 2 फिल्म्स. So this article actually discusses के politics या propaganda की जो भी theories हैं, they are used for discussion of Battleship Potemkin and Triumph of the Will, and दोनों जो हैं वो films हैं, right? मैं आपसे ये article नहीं discuss करूँगी right now, but I just wanted you to know कि theory is used for discussion of 2 films. और ये पूरा का पूरा आर्टिकल थ्रू आउट सिर्फ फिल्म को डिस्कस कर रहा है. इट विल डिस्क्राइब व्हाट इज हैपनिंग इन द फिल्म. इट विल डिस्क्राइब हाउ द फिल्म इज यूज्ड टू गिव अ स्पेसिफिक मैसेज व्हिच इज प्रोपेगेंडा बाय एडोल्फ हिटलर. ओके, और डायरेक्टर ने किस तरीके से वो सारा इम्प्रेशन क्रिएट किया व्हिच इज एसेंशियल फॉर प्रोपेगेंडा. ये एक आर्टिकल है जो कि सिर्फ प्रोपेगेंडा को डिस्कस कर रहा है, which means for discussion of the film several quotes or one or the other quote can be used from this article as well. तो इसके एंड पे there would be a list of references. उनमें से कुछ भी कंसल्ट किया जा सकता है for finding further information on propaganda etc. Okay, so this article on propaganda theory does not discuss films as such या film scenes as such because it is focusing on propaganda model only. जो दूसरा मैंने आपको दिखाया ये वाला, ये films पे focus कर रहा है, तो this will discuss film scenes and film content in detail. So you can call it content analysis. तो हम बता रहे होते हैं what this paper is about. जब इस पेपर की हम बात कर रहे हैं politics, propaganda and film form, so this article would definitely say कि this paper focuses on, for example, Battleship Potemkin and Triumph of the Will, and it tells you कि how these 2 films are used for propaganda purposes. Right, so the objective of this paper would be to analyze how Triumph of the Will and Battleship Potemkin are used for propaganda, right? और फिर उनके content की difference discuss करेगा. I would show you this film. It says how film is used for propaganda and manipulation. Please realize कि हमने अभी जो मैंने आपसे पहले बात की, I was talking about peace and war journalism के कैसे propaganda किया गया against Iraq, and I was talking about Battleship Potemkin and Triumph of the Will के how these films are propaganda films, for example, especially Triumph of the Will. Why is that a propaganda film? Okay. इस फिल्म में आपको वॉर एंड पीस के अलावा भी प्रोपेगेंडा नजर आएगा. सो लेट्स सी, छोटी सी है और साथ साथ थोड़ी सी बातचीत करते रहेंगे. So my name is Jerry Croth. I'm a professor, psych prof in California, and this talk is about propaganda. And I would like the psychology of propaganda. And I'd like you to look at a set of photographs. This is from the 50s. And just store your emotional reactions. What are your emotional reactions to what you see? क्या समझ में आया about propaganda? आसिम, आतिर, anyone? कि वो आपसे क्या कह रहा था कि propaganda क्या है? Because from this point, for example, उसने प्रोपेगेंडा की डिस्कशन इस इमेज से स्टार्ट की. आई सेड कि शुरू में उसने एडवर्टाइजिंग डाली एंड ही वाज टॉकिंग अबाउट, ही सेड, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ प्रोपेगेंडा. हमने तो अभी, मैंने आपसे कहा कि हमने ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशंस डिस्कस की थी. वी वर डिस्कसिंग फॉर एग्जांपल वॉर सिचुएशंस, जो कि हमने पीस एंड वॉर जर्नलिज्म में देखा था इराक के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हाउ प्रोपेगेंडा टूल्स वर यूज्ड
for actually gearing a war on Iraq, right? और उसके बाद हमने प्रोपेगेंडा, मैंने आपसे कहा, जो मैं आपको आर्टिकल दिखा रही थी अर्लियर, आई वाज शोइंग यू कि जो ट्रायम्फ ऑफ द विल है वो प्रोपेगेंडा कितनी खूबसूरती से करती है। अगर आप उसको कंपेयर करेंगे विद आइजनस्टाइल्स बैटलशिप पोटमकिन, तो आपको नजर आएगा कि बैटलशिप पोटमकिन इज एक्सट्रीमली वायलेंट फिल्म, राइट? उसके मुकाबले में ट्रायम्फ ऑफ द विल इज नॉट वायलेंट, इट्स लिरिकल, बहुत पीसफुल पीसफुल एंड काम फिल्म है। सो बेसिकली, और फिर यहाँ पे जो आपसे बात कर रहा है ये प्रोफेसर ऑफ एन अमेरिकन यूनिवर्सिटी, ही इज टॉकिंग अबाउट प्रोपेगेंडा बट ही इज शोइंग यू एडवर्टाइजिंग, ही इज टेलिंग यू के what can be the emotional or psychological impact of such ads. उसने आपसे कहा कि वो आपको आज से आई थिंक ही डिड मेंशन कि वो आपको बहुत पुराने एडवर्टीजमेंट दिखा रहा है 1940s 1950s के, राइट? सो यू कैन अंडरस्टैंड कि 60-70 साल पुराने एडवर्टाइजिंग में यू कैन सी कि यहाँ पे क्या हो रहा है। राइट हियर आप देख रहे हैं ना कि ये आपको कह रहा है नथिंग डज इट लाइक 7 अप, और ये कितना छोटा बच्चा है, राइट? उसके बाद इससे जो अगला था कोका कोला का था, हाउ सून इज टू सून। वो कह रहा है फॉर अ बेटर स्टार्ट इन लाइफ स्टार्ट कोका कोला अर्लियर, एंड what do we know about Coca-Cola today? शायान सनी, सुफियान लियाकत। हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा बुरा है, और आधे से ज्यादा शुगर होती है उसमें। द हेल्थ हैजर्ड्स, जी, और of course health hazards, so you and can that is consumed, so मतलब दुनिया में मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा कंज्यूम किए जाने वाला ड्रिंक है, पानी के बाद प्रॉब्ली। जी, तो हम वापस नंबर 1 आ गया। तो आपको फाइनली पानी बिकना शुरू हो गया ना। पहले आप पाकिस्तान में भी यू कैन से कि पिछले कोई 15-20 सालों से एक जो चीज फ्री मिला करती थी उसको खरीद के पीने का रिवाज पड़ गया ना, और पानी को बेचने a hard time, like my brain is having a little bit hard time consuming this advertisement. like मुझे सिर्फ like एड याद आ गया कि मतलब अभी आजकल क्या हो रहा है, एंड पुराना अभी ये कहते हैं कि स्टार्ट कोला अर्लियर, like this is peak propaganda. हाँ, तो वो आपको मैं आपसे ये कह रही थी कि हमने अभी जब तक जो प्रोपेगेंडा डिस्कस किया था वो वॉर के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉलिटिकल डिस्कस किया था कि पॉलिटिक्स में प्रोपेगेंडा कैसे यूज होता है। यहाँ पे तो आपको एवरीडे लाइफ में नजर आ रहा है, सोशलाइजिंग में, और वो इसने आपसे सिर्फ ये कहा कि कितने छोटे बच्चे को किया गया। एंड आई वुड टेल यू कि आई थिंक probably it was 2018 or 19, मेरे जो nieces and nephews now they are like, मेरा ख्याल है कि वो तीनों की टीनेज खत्म हो रही है, 18, 19, 20 साल उनकी एजेस हैं। वो आए हुए थे लाहौर, एंड मैंने उनको कोक कोला ऑफर किया, तो मुझे उस बच्ची ने, जो कि यू कैन से कि 16 साल से डेफिनेटली बड़ी थी, राइट? तो उस बच्ची ने मुझे ये जवाब दिया कि जी फूफी जान मैं कोक नहीं पी सकती, इससे हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, राइट? सो द गर्ल इज इन मेडिकल कॉलेज राइट नाउ, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि जो कॉन्ट्रास्ट कितना है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कि अबाउट 60-70 years ago एडवर्टाइजिंग या प्रोपेगेंडा ये था कि जी स्टार्ट अर्ली, राइट, सॉफ्ट ड्रिंक्स के लिए, और 60-70 साल आपने स्टार्ट अर्ली कह के बेचा, एंड इन द मीन वाइल यू वर्कड इट आउट कि पानी कैसे बेचना है, समथिंग दैट पीपल बाय फॉर फ्री,
people get for free, right? तो जो चीज आप मुफ्त में पीते आ रहे थे since past 20 years, they have worked it out कि उसको बेचना कैसे है. So people don't drink free water. Instead, they go for they pay for water. तो ये सिचुएशंस है. तो बेसिकली वो आपसे ये डिस्कस कर रहा था कि प्रोपेगेंडा की सिग्निफिकेंस क्या है. एंड यू कैन क्लियरली सी कि एडवर्टाइजर जो है वो कैसे मूव करता है फ्रॉम वन डायमेंशन टू अनदर. अगर आप फॉर इंस्टेंस मैं आपको एक और चीज सॉरी मैं इसको एस्केप करना चाह रही थी कि अगर हम यहाँ पे जाएं फॉर इंस्टेंस राइट, और अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ डव सोप एड्स, राइट, आप देख रहे हैं मैंने डव एड्स लिखा और डव एड्स के साथ जो इमेजेस आना शुरू हुई तो यू वुड प्रोबेबली रियलाइज के आप ये देख रहे हैं ये वाली इमेज, ये किसी खूबसूरत औरत की इमेज है या नहीं है. आई वुड लीव दैट डिसीजन टू यू, बट यू कैन से कि एडवर्टाइजिंग में पहले इस तरह की औरतों को फोकस नहीं किया जाता था, बल्कि ये आप इसी यहाँ पे नीचे देखें राइट साइड कॉर्नर पे, तो एक आपको यंग वुमन नजर आ रही है, यंग वुमन विद वाइट स्किन, राइट, और उसके लेफ्ट पे ये दूसरी old woman with dark skin and with so much wrinkles on her face, right? इसको दिखाने का मकसद ये था कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एडवर्टाइजिंग जो है वो चेंज हुई है, राइट? और अगर आप डव की कैंपेन्स देखेंगे तो उसमें आपको हर तरह की औरतें नजर आएंगी, जिसमें आपको वाइट स्किन की ब्यूटी से निकल के ब्लैक स्किन की ब्यूटी और ओल्ड यंग वुमन के अगेंस्ट ओल्ड वुमन की ब्यूटी, और एट द सेम टाइम क्लीन स्किन के बजाय फ्रेकल्स वाली औरत जो है, फ्रेकल्स के साथ जो औरत नजर आएगी उसकी ब्यूटी की भी बात हो रही होगी, राइट? तो क्योंकि डव की जो कैंपेन थी उसका टाइटल था फील ब्यूटीफुल, राइट, लुक ब्यूटीफुल से निकल के फील ब्यूटीफुल, जिसको किसी पाकिस्तानी एडवर्टाइजर ने पिछले साल 2 साल में पाकिस्तानी एड में कॉपी किया गया डव की कैंपेन को, जिसमें आपने शायद एडवर्टीजमेंट देखा भी हो, जिसमें वो बात कर रहे होते हैं कि जी मेरे बाल लगते हैं लाइक चिड़िया का घोंसला, कर्ली हेयर, बिकॉज स्ट्रेट हेयर को ब्यूटी की एग्जाम्पल समझा जाता था. सो यू कैन से कि जो है प्रोपेगेंडा किस तरीके से काम करता है कि ब्यूटी के स्टैंडर्ड्स सेट कर दिए, और यहाँ इस केस में हेल्थ के स्टैंडर्ड्स. और आप ये देख रहे थे कि अगले वाले में तो अमेजिंग ही था कि इट सेड के यहाँ पे कि डॉक्टर साहब स्मोकिंग कर रहे हैं, सेंटा क्लॉज स्मोकिंग कर रहा है, मोर डॉक्टर स्मोक कैमल्स सिगरेट देन एनी अदर सिगरेट. आज टुडे व्हाट वी नो अबाउट सिगरेट्स, what do we know about cigarettes today? They cause cancer and हाँ, so और अगेन तो आपको नजर आया ना कि यहाँ पे डॉक्टर रिकमेंड कर रहा है स्मोकिंग, और इससे पहले कि पीपल रिकग्नाइज, आजकल तो आपको टीवी पे फिल्म में अगर आपको सिगरेट का शॉट डालें तो नीचे क्या लिखना पड़ता है? Smoking causes cancer and death, etc. Right. So before people understood that it was injurious to health, आधी सदी से ज्यादा काम तो गुजर चुका था, right? So you can understand कि जो आपका एडवर्टाइजर है उसने आधी सदी गुजार ली थी selling cigarette by showing Santa smoking it or by showing a doctor smoking it or recommending it, right? उसने कहा यहाँ पे ये जो प्रोफेसर है he said कि जी it sounds like a recommendation, more doctors smoke Camel than any other cigarette, क्योंकि उसने डायरेक्टली तो नहीं कहा डॉक्टर ने कि आप स्मोकिंग करें,
but it's a recommendation. So I think with this important difference कि propaganda किस तरीके से इस्तेमाल कर सकता है, which I said is propagation of information. और अगर आप next पे जाएं, for instance, ये जो था यहाँ पे वो आपसे क्या कह रहा था कि आप पीछे देख सकते हैं in this image on the left hand side, ये खातून इतनी इंटेलिजेंट हैं कि खाना पकाते हुए इन्होंने जला दिया, and all it says कि don't worry darling, you didn't burn the beer, which means I don't know कि आपका कितना exposure है of people who like beer for example, लेकिन इस ये advertisement beer और food को एक बराबर बता रहा है कि अगर food is burnt, no worries, we still have beer, right? So I think I know people जिनको if you would come across them, they would say, आपने शायद सुना होगा people say कि खाना खाने के बजाय they are having beer because they think beer is full of vitamins, and some people कुछ जो हैं consumers of beer, they feel कि अगर वो खाना खाने के बजाय मील के बजाय beer ले लेंगे तो this is sufficient. So at least this particular advertisement on the left is saying so कि आप खाना खाएं या beer पिएं, it's one or the same thing, right? तो food जल गया कोई बात नहीं, we can have beer. At the same time, you mean a woman can open it? ये आपको right side पे नीचे नजर आ रहा है, तो you can understand कि women को basically जो आप objectification वाली Burn the बात, beer. sorry मैं इसको स्टार्ट नहीं कर रही थी, बट यू कैन अंडरस्टैंड कि जो हम कॉन्सेप्ट्स जो कि आपने अभी शायान सनी ने जब अपना पेपर स्टार्ट किया तो उसका पहला सेंटेंस था पेट्रियार्कल कल्चर का, राइट? सो हम जो भी ड्रामा या फिल्म में शो करेंगे, वी आर एक्चुअली यूजिंग फॉर प्रोपेगेटिंग certain norms of our society and culture. So you can understand कि modern woman को अगर film show कर रही है या drama show कर रहा है as culprit, so that is also a type of propaganda, and this is precisely what this professor is saying. जी कोई comment है? I think कि with this आज का जो सेशन है उसमें अगर कोई important questions हैं वो आप पूछ लें. I would suggest कि before next class please try watching this video, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम जरा थोड़ा सा डिटेल में इसको जरा डिस्कस कर लेंगे कि प्रोपेगेंडा जो है वो सिर्फ वन टाइप का नहीं है. इट्स आल्सो यू नो लाइक यू कैन आल्सो थिंक अबाउट इट के जी व्हाट इज द एजेंडा बिहाइंड दिस काइंड ऑफ कंटेंट, क्योंकि और फिर ये कि आप इसके साथ एजेंडा थ्योरी फॉर एग्जांपल लगा भी सकते हैं कि नहीं लगा सकते. जिस तरह मैंने अभी आपसे कहा कि हमने यहाँ पे इस ऑथर ने प्रोपेगेंडा का वर्ड इस्तेमाल किया, राइट? सो यहाँ पे मैं आपको यू वुड रियलाइज कि गूगल क्लासरूम में आपकी डिफरेंट टॉपिक्स पड़े हुए हैं जिसमें हमने काफी सारे कवर कर लिए. एंड आई सेड के विजुअल प्लेयर वाज पार्ट ऑफ जेंडर थ्योरीज, जिसको शायान सनी ने गूगल क्लास में फर्दर सर्च नहीं किया था, बट आई शोड हिम जस्ट नाउ. और उसी तरह कुछ और चीजें भी यहाँ आपको नजर आ रही होंगी. कल्टीवेशन जो कि इफेक्ट्स का हिस्सा है, इफेक्ट्स हमने लास्ट वीक डिस्कस किए थे, राइट? और स्टीरियोटाइप्स हो गया, एजेंडा बिल्डिंग, एजेंडा सेटिंग, सेल्फ साइकी एंड कॉलोनियल कंडीशन. सो ये डिफरेंट चीजें हैं. आई वुड जस्ट से कि यू कंटिन्यू थिंकिंग अबाउट इट एंड यू शुड ट्राई सीइंग कि एक चीज जो आप देख रहे होते हैं उसका दूसरे से लिंक क्या है, बिकॉज ही वाज टॉकिंग अबाउट प्रोपेगेंडा ओनली. इफेक्ट की तो उसने बात ही नहीं की, बट यू कैन से कि अगर आप इस तरह की इमेजेस दिखाते रहेंगे तो उसका इफेक्ट क्या होगा एंड हाउ similar attitudes will be created. So right now focus effect नहीं था, focus propaganda था. So effect would follow propaganda, right? कोई comment है on the video? क्योंकि I think कि इसके बाद advertisement से निकल के वो आगे चला गया था. He started discussing कि propaganda जो है वो आपके दिमाग पे how it affects your brain, क्योंकि psychological impact पे बात कर रहा था.
सो यू कैन अंडरस्टैंड कि प्रोपेगेंडा को उसने साइकोलॉजी से लिंक कर दिया, राइट। और फिर उसने कहा कि आजकल जिस किस्म के मीडिया टूल्स इस्तेमाल करते हैं उसका इम्पैक्ट ये है कि स्टूडेंट्स या बच्चे they are too busy in consuming media all the time and they hardly are attentive to real information, जिसमें आप जिसके लिए उसने डंबिंग और ट्रांस का मतलब के वर्ड्स इस्तेमाल किए कि बच्चों को यही नहीं पता कि लिंकन कौन है। एंड जो इसने ये आपको इसको एक सर्टन जिप कोड की बात कर रहा था 90210, he said it is because it was the title of a program, right? तो जिस चीज को जितना ज्यादा एम्फसाइज किया जाता है या जितना ज्यादा प्रमोट किया जाता है दैट बिकम्स इम्पोर्टेंट, राइट। सो यू शुड अंडरस्टैंड कि प्रोपेगेंडा जो है वो बेसिकली प्रोपेगेशन ऑफ इंफॉर्मेशन से उसने उसको लिंक किया। एंड ही सेड कि जितना ज्यादा प्रोपेगेंडा करेंगे उतना ज्यादा दिमाग पे सवार होगा। एंड इट इज रियली अबाउट टेलीविजन मैसेजेस एंड साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ मैसेजेस विच इज एन इम्पॉर्टेंट एम ऑफ प्रोपेगेंडा। और वो आपको उसने कहा कि डंबिंग एंड ट्रांस की तरह इम्पैक्ट करता है। जी, एनी क्वेश्चन और कमेंट अबाउट व्हाट वी हैव स्टार्टेड डिस्कसिंग? The average American. जी, कोई कमेंट है? मैम जो मोस्ट हम देख रहे हैं तो लाइक दैट इज फ्रॉम द ओल्ड टाइम्स, लाइक 1940 से लेकर 1970s, लाइक एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, लाइक 2-3 डेकेड्स हैं, उसमें हम मोस्टली देख रहे हैं कि इस टाइप का वो हमें देखने को मिल रहा है। हाँ, वो मॉडर्न में आपको भी वो हो सकता है बट लाइक ऑफ कोर्स मॉडर्न में भी होगा। मैं आपको सिर्फ कंट्रास्ट शो कर रही थी कि आजकल पिछले कोई काफी सालों से 2-3 डेकेड्स, खासतौर पे आप लोगों की उम्र भी शायद, ज्यादातर लोगों की तो शायद 3 डेकेड्स अभी एज ही नहीं हुई आपकी क्लास में, मोस्ट पीपल आर प्रोबेबली यंगर देन 30। तो मैं आपसे ये कह रही थी कि हाउ एडवर्टाइजिंग हैज चेंज्ड। वही सेम एडवर्टाइजर जो कि कह रहा था स्टार्ट अर्ली नाउ सेज के जी हम कोई हेल्थ के वो ढूंढ रहे हैं बिकॉज दे नो कि जो इंफॉर्मेशन लिटरेसी है या टेलीविजन या फिल्म बेस्ड विजुअल लिटरेसी है या और तरह से ग्लोबलाइजेशन की वजह से भी तो लिटरेसी पे इम्पैक्ट आया ना। सो दे नो कि अब को या 7up को उस तरह स्टार्ट नहीं कर सकते कि स्टार्ट अर्ली। हाउ सून इज यू नो जो इसमें आपसे वो ये कह रहा था हाउ सून इज टू सून, तो वो यहाँ पे आपको वो मुख्तलिफ चीजें कह रहा था ना, नथिंग डज इट लाइक 7up, और फिर उसमें इसने हाउ सून इज टू सून, आप देख रहे हैं इसकी कैप्शन थी। सो बच्चों को जितनी जल्दी शुरू करा दो। एंड आई नो अ लॉट ऑफ पीपल आल्सो जिनको आई हैव सीन कि जी 2 साल के बच्चे के आगे कोक ग्लास में डाल के रख दी या उसको ट्राई करवा दी। आई थिंक आपकी एनवायरनमेंट में भी होंगे ऐसे बच्चे कि थोड़ा सा डाल के दे ही देते हैं एंड देन किड्स बिकम एडिक्टेड, क्योंकि वो यही कह रहा था कि इट इज एडिक्टिव। मैम चाय भी एडिक्टिव होती है, चाय भी पिलाते हैं बच्चों को, मैंने देखा। हाँ, चाय भी एडिक्टिव होती है। सो मेन तो यही है ना कि लोग क्या कुछ कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव तो यही था कि व्हाट एन इमेज कैन डू एंड व्हाट अ मैसेज कैन डू, और व्हाट एडवर्टाइजिंग और न्यूज और फिल्म और ड्रामा कैन डू। तो जैसे आजकल मेरा ख्याल है कि हमारे न्यूज़पेपर्स जो हैं वो या काफ़ी सारे जो मैगजीन्स हैं उसमें इस किस्म का क्रिटिसिज्म आ रहा है कि पाकिस्तानी ड्रामा जो है वो सोसाइटी को ओपन अप कर रहा है और बैड मॉरल्स सिखा रहा है लड़कियों को। फॉर एग्जांपल बाय शोइंग विमेन लाइक यू नो मैं विश इन अ ड्रामा लाइक मेरे पास तुम हो, और बाकी ड्रामों को भी कि दे आर शोइंग काइंड ऑफ मॉडर्न विमेन, सो विच इज आल्सो कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ प्रोपेगेंडा, कि ड्रामा क्या प्रोपेगेंडा कर रहा है और उसके रिएक्शन में व्हाट जर्नलिस्ट्स और क्रिटिक्स आर राइटिंग अबाउट दिस प्लेस और दिस टाइप ऑफ कंटेंट। राइट, आप लोगों ने खुद अक्सर मुख्तलिफ फिल्म्स का जिक्र किया जिन पे बैन लगा दिया गया या जो ड्रामास चलने शुरू हुए और उनको बैन कर दिया गया फॉर वन और द अदर रीजन बिकॉज देयर वाज अ लॉट ऑफ प्रोपेगेंडा अगेंस्ट देम और देयर कंटेंट।
just what you read in the media. I'm not talking about Di and Fergie, but about the important stuff, the politics and economics. Has it ever occurred to you it could be a system of propaganda designed to limit how you imagine the world? Well, that's the view of Noam Chomsky, who's been teaching here in Boston for the past 30 years. Described as America's leading dissident, he's based at the Massachusetts Institute of Technology, where, although it's very cold, it isn't exactly the Gulag archipelago. As a working journalist myself, I've come to talk to Professor Chomsky about bias in the media. Orwell's nightmare, a place where propaganda rules, where thought is controlled. Comrades, attention! Here is a special bulletin from the Ministry of Peace. It's now a familiar, if chilling, Cold War fable. Most of us would say it's old hat. But is it? The thought police are joining you. The chief job of a newspaper is to inform. To tell people. For decades, the freedoms of thought and expression have been central to Western democracy. The media sees itself as free, fearless, stroppy, and for many in power, the press are too strong. So the idea that Orwell's warning is still relevant may seem bizarre. But not to Noam Chomsky, who thinks the image of a truth-seeking media is a sham. जी, अभी तक जो भी प्ले किया इसमें से कोई 2 सिग्निफिकेंट पॉइंट्स बताइए जी। हाँ, ट्रुथ सीकिंग मीडिया इज अ शैम। मीडिया तो क्लेम ही यही करता है, चाहे जितने भी न्यूज चैनल्स हैं आपके सारे यही क्लेम करते हैं ना कि जी वॉच डॉग ऑफ द गवर्नमेंट, और वो कह रहा है कि जिस चीज को हम वॉच डॉग ऑफ द गवर्नमेंट कहते हैं इट्स अ शैम। यहाँ पे लिखा हुआ बाय द वे जो मैंने कहा अभी, जब नहीं लिखा हुआ तो कोई गड़बड़ है ना कि मैं क्या कह रही हूँ। सो मैंने चोम्स्की की बात को किसी और से लिंक कर दिया। आतिफ, डू यू एग्री विद व्हाट आई जस्ट डिड? आपने सुना? हाँ, नहीं, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ जो मैंने बोला था, कैन यू रिपीट दैट? इसलिए कि आप सेलफोन पे थे। ओके जी। आतिर, डू यू एग्री विद व्हाट आई सेड? सुना था मैंने क्या कहा? हाँ, जो 3 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं वो भी अटेंटिव नहीं है टू डिस्कशन। तो मैं आपसे यही तो कही थी कि हमारा अटेंशन लेवल जरा थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। इसमें 2 चीजें थी। शुरू में सबसे पहले जो आया था कि सबसे पहली जो लाइन थी वो ये थी कि द वे वी सी द वर्ल्ड, उसने उसको प्रोपेगेंडा करार दिया, तो जो कि मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ी बात है कि वो ये कह रहा है द वे वी सी द वर्ल्ड इज पार्ट ऑफ प्रोपेगेंडा। सो कैन यू ट्राई एक्सप्लेनिंग हाउ डू वी सी द वर्ल्ड, शाहजेब? जी, अगर वो कह रहा है कि द वे वी सी द वर्ल्ड इज प्रोपेगेंडा, तो ये तो बहुत बड़ी बात है ना। हम हर चीज जो हम सोचते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, कहते हैं, या हम देखना चाहते हैं, या हम चाहते हैं कि लोग इस तरह रहें, या हम ये चाहते हैं कि औरतें इस तरह रहें, या हमारे नेबरहुड में हमारे पड़ोसी अपने बच्चों को इस तरीके से पालें जिस तरह मैं देखता हूँ, तो वो ये कह रहा है द वे वी सी द वर्ल्ड इज ऑल्सो प्रोपेगेंडा। उसके बाद यहाँ पे उसने रोका कि उसके बाद जो उसने यहाँ पे लिखा हुआ था, ट्रूथ सीकिंग मीडिया इज अ शैम। मीडिया, न्यूज मीडिया तो बेस्ड ही एक्चुअलिटी पे है। आपने शायद आज तक नोटिस नहीं किया, आई हैव यूज दिस वर्ड इन क्लासरूम बिफोर, जिसमें मैंने आपसे कहा कि आपकी न्यूज रिपोर्ट्स, आपकी डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स,
आपके जो मुख्तलिफ फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल प्रोग्राम्स वगैरह हो रहे होते हैं जिसमें हम किसी न किसी को बुला लेते हैं सियासतदान को, और पब्लिक से भी एट टाइम्स पूछना शुरू कर देते हैं क्वेश्चंस. सुपोजिडली डायरेक्ट सिनेमा, आपको शायद थोड़ा सा आइडिया होगा कि डॉक्यूमेंट्री को हम डायरेक्ट सिनेमा कहते हैं. क्यों कहते हैं डायरेक्ट सिनेमा? एनी आइडिया? हाँ, कि कैमरा जो है वो डायरेक्टली शूट कर रहा होता है. आप ना तो इम्प्रोवाइजेशन करवा रहे होते हैं और ना एक कहानी लिख के लोगों से परफॉर्म करवा रहे होते हैं. न्यूज़ मीडिया आपकी रिटन स्टोरीज परफॉर्म बाय पीपल नहीं है. इट इज रियल परफॉर्मेंस जिसको आप शूट करके लोगों को दिखा देते हैं. असेंबली में क्या हुआ वो रियल है ना. फैब्रिकेटेड जो है, फैब्रिकेशन से आपका जो भी वट एवर यू मीन बाय फैब्रिकेशन, बात सिर्फ ये होती है कि वो फैब्रिकेशन शायद वो इस वजह से कहते हैं क्योंकि हर चीज़ एडिटेड होती है. जब आप एडिट करेंगे तो फिर आप वही दिखाएंगे ना जो आपको सूटेबल लग रहा है. उसके काफ़ी सारे दूसरे पार्ट्स जो आपको लगे कि नहीं ये इतनी स्ट्रांग नहीं है, उसको आपने एलिमिनेट कर दिया. तो फैब्रिकेशन फिर इसी वजह से होगी कि आपने पूरी बात सुनने का मौका ही नहीं दिया. यू आर कम्युनिकेटिंग हाफ द ट्रुथ. ऐसे ही है. फैब्रिकेशन तो इसीलिए कहेंगे ना कि एडिटेड है और हाफ द ट्रुथ है. दैट इज वाई हम डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए कहते हैं कि जी बायस ऑफ द प्रोड्यूसर कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, राइट. चाहे वो 9/11 पे हो, चाहे वो जो ऑरलैंडो डिजास्टर है उसके ऊपर हो, या किसी भी चीज पे हो, या फिर जो भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा पिछले इलेक्शन, अपने जो इलेक्शन उसने विन किया उस कैंपेन के दौरान वो जो भी चीजें कह रहा था, उसको आप ये नहीं कह सकते कि कैंडिडेट या प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट वाज नॉट बायस्ड. आप नहीं कह सकते बिकॉज वो तो सारी कॉन्वर्सेशंस वो कर रहा था जिसमें वो बात कर रहा था अमेरिकन ड्रीम की, फ्रीडम ऑफ विमेन, फ्रीडम ऑफ पीपल टू बी व्हाट दे वांट टू बी. और फ्रीडम, अमेरिका इज द ओनली कंट्री दैट क्लेम्स कि आपके पास राइट है कि आपके पास रिलीजन हो, और आपके पास ये भी राइट है कि आपको रिलीजन नहीं चाहिए तो आप ना रखें रिलीजन, राइट. अमेरिका के अलावा कोई कंट्री आपको ये राइट देती है? मैं कंट्री लेवल की बात कर रही हूँ ना. यू हैव टू बी अटेंटिव टू व्हाट इज बीइंग सेड. मैंने कहा कि कोई कंट्री आपको ये राइट देती है कि रिलीजन है तब भी ठीक है, रिलीजन नहीं है तब भी ठीक है, राइट. सो जब हम कंट्री लेवल की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि कंट्री आपको प्रोटेक्शन दे रही होगी ना, कि मैं रिलीजन में नहीं अगर बिलीव करता तो मैं नहीं बिलीव करता. आपको लॉ ऑफ द लैंड प्रोटेक्ट करेगा फॉर नॉट बिलीविंग. आपको कोई कंडेम नहीं कर सकता, कोई आके आपको मारने की कोशिश नहीं करेगा इस बात पे कि आप रिलीजन में बिलीव नहीं करते, बिकॉज द लॉ ऑफ द लैंड प्रोटेक्ट्स यू. चीजें सारी इंटरकनेक्टेड है ना. आपको यू हैव टू लुक एट दिस वे. Of the global atheists and non-religious population, 76% reside in Asia. Right. ये जो शाहजेब कह रहा था, ये उससे रिलेवेंट कोई बात है? कह रहा है 76% इन एशिया एंड द पैसिफिक, और उसके बाद यूरोप 12%, नॉर्थ अमेरिका 5%, लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन 4%, सब सहारन अफ्रीका 2% एंड 1% नॉर्थ अफ्रीका एंड मिडल ईस्ट. एनीवे, आई थिंक इवन अमेरिका जैसी कंट्री जो है उसके भी डॉलर के ऊपर क्या लिखा हुआ है? डॉलर के ऊपर अच्छा, वाकई जी जी, डॉलर पे आपकी एक अमेरिका की एक फिल्म है जिसकी क्लोजिंग उस डॉलर पे लिखी हुई स्टेटमेंट पे खत्म होती है. आई थिंक इट वाज प्रोबेबली, आई कांट रिकॉल, इट वाज वन ऑफ द क्रिसमस फिल्म्स. एल्म स्ट्रीट तो शायद नहीं हो सकती, क्योंकि आई थिंक एंडिंग जो थी क्योंकि कोर्ट को डिसाइड करना होता है कि गॉड है या नहीं है. ये वाली फिल्म शायद नहीं हो सकती.
उसमें फिर वो क्योंकि माँ जो है वो बहुत ज्यादा रियलिस्टिक होती है, तो बेटी द डॉटर कीप्स ऑन टॉकिंग अबाउट क्रिसमस एंड सेंटा जिसने आना होता है, एंड मदर कीप्स ऑन टेलिंग हर कि जी सेंटा नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। और फिर फाइनली जो है वो मैटर कोर्ट में चला जाता है। फिल्म की स्टोरी यही थी कि मैटर कोर्ट में चला जाता है और मदर बहुत अपसेट होती है, शी सेज देयर इज नो गॉड, और कोर्ट को डिसाइड करना होता है कि गॉड है या नहीं है, एंड कोर्ट डजंट नो व्हाट टू डू। तो लास्ट एपिसोड में सेंटा जो है वो बच्ची के साथ बैठा होता है, जो जिसको नोबडी एल्स नोज कि ये सेंटा है, और वो उसको डॉलर पकड़ा के कहता है ये देखो इस पे क्या लिखा हुआ है। तो द लिटिल गर्ल वॉक्स टू द जज, और जज को जाके देती है, डॉलर के ऊपर लिखा होता है कुछ गॉड का कुछ लिखा हुआ है, इन गॉड वी ट्रस्ट। तो फिल्म की क्लोजिंग जो है वो इस ये फिल्म की क्लोजिंग इस जगह पे थी कि व्हेन कोर्ट हैड टू डिसाइड, तो कोर्ट फिर यही डिसाइड कर देती है कि जब स्टेट कह रही है स्टेट कह रही है ना। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि अ कंट्री जो कि लोगों को राइट देती है टू हैव और नॉट हैव द रिलीजन, उसका डॉलर कहता है इन गॉड वी ट्रस्ट, राइट। सो आई थिंक ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी कॉम्प्लेक्स सी सिचुएशन थी जो कि सो बेसिकली वो इमेज ऑफ ट्रूथ सीकिंग मीडिया इज अ शैम, ओके। तो विच मीन्स के इसको हम कैसे इलेबोरेट करेंगे? कैन यू ट्राई इलेबोरेटिंग इट बाय लुकिंग एट कंट्री सिचुएशंस, फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी मीडिया, अमेरिकन मीडिया, और चलें आप अल जजीरा या बीबीसी ले लें, एंड इफ यू पिक वन वर्ल्ड इवेंट, तो फिर आप इस प्रॉब्लम को उस इवेंट के साथ कैसे लिंक करेंगे? क्योंकि वो ये कह रहा है कि ट्रूथ सीकिंग मीडिया इज अ शैम। मरियम नवाज ने क्या स्पीच दी एंड व्हाट डिड शी से? इट्स इंटरेस्टिंग टू सी कि जो आपका पॉलिटिकल लीडरशिप है वो अपने लिए माशाल्लाह के अल्फाज ख़त्म नहीं हो रहे। सो ये थी आपकी लाइन, ट्रूथ सीकिंग मीडिया इज अ शैम। तो जो आपको मरियम नवाज का क्लिप नजर आया वो ट्रूथ है कि नहीं है शाहजेब? मैंने आपको अभी एक क्लिप दिखाया, वो ट्रूथ है कि नहीं है? कैसे नहीं है ट्रूथ? जब वो चीज हो गई और आपने उसको रिकॉर्ड कर लिया तो वो ट्रूथ है। इट इज वेरी टे जो आपने मोमेंट देखा, मरियम टॉकिंग टू, इतना बड़ा आपको गैदरिंग नजर आई, शी इज टॉकिंग टू देम, उसके साथ जो लोग सपोर्टर्स खड़े हुए हैं, बहुत लार्ज नंबर्स में सपोर्टर्स उसके सामने और उसके सामने भी हैं और उसके साथ भी हैं ऑन द स्टेज, ठीक है। सो बेसिकली वो तो ट्रूथ है जो आपको नजर आ रहा है, दैट इज वेरी टे। उसके ट्रूथ को तो आप डिनाई ही नहीं कर सकते। सो इफ यू आर ट्राइंग टू से कि जी ट्रूथ नहीं है, तो वो आप उसको गलत तो उसको नहीं कह सकते। नाउ ये कह रहा है, चॉम्स्की कह रहा है ट्रूथ सीकिंग मीडिया इज अ शैम। सो अगर वट एवर यू वर ट्राइंग टू से ट्रूथ नहीं है, सो आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड कि अगर आप उसको ट्रूथ नहीं कह रहे तो क्यों नहीं कह रहे? आपको क्यों लगा कि आपको लगा कि मरियम की जो मूवमेंट है दैट्स अ शैम? तो आपको ये लग रहा है कि मरियम का इतना बड़ा जलसा मीडिया के ट्रूथ के पॉइंट ऑफ व्यू से शैम इस वजह से हो सकता है कि लार्ज ऑडियंस इज एक्चुअली नॉट देयर और मीडिया उसको दिखा रहा है। जी आतिर, आप क्या कह रहे थे? जी जी, वो बिल्कुल मैनिपुलेट कर सकता है फ्रेम्स को, और वो दिखाता है कि एक थोड़ी सी एरिया में अगर इतने लोग बैठे हों तो एक झूठ दिखा देता है कि इतने लोग बैठे हों। All right, so you are basically talking about footage, manipulation of video footage, जो कहीं का भी की जो गैदरिंग है वो कहीं भी लाके जोड़ देंगे and that would look like के जी ऑल राइट। जी जी आतिफ, आप क्या कह रहे हैं? हाँ, तो फिर उस देखें, आप कह रहे हैं दिखाते हैं बहुत रश है, तो उसकी वजह क्या है? क्यों मैनिपुलेट कर रहा है? क्या फायदा? अगर मैं हूं चैनल
तो मुझे क्या फायदा है फॉर मैनिपुलेशन? जी नहीं, लेकिन ये एडवर्टाइजिंग तो नहीं है आतिफ, ये जो आपने मरियम का भी देखा ये एडवर्टाइजिंग तो नहीं थी, तो देन व्हाई आर यू कॉलिंग इट पेड कंटेंट? ऑल राइट, सो आई थिंक दैट्स अ बेटर एक्सप्लेनेशन कि चैनल्स जो हैं वो सपोर्ट कर रहे होते हैं डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज को, सो बेसिकली यू हैव टू मेंशन दैट रीजन। तो उसको मैनिपुलेशन इज नॉट सफिशिएंट, बट सेइंग कि जी चैनल इज मैनिपुलेटिंग बिकॉज ऑफ इट्स ओन पॉलिटिकल अलाइनमेंट मेक सेंस। जी ओके, सो दैट्स हाउ यू वुड एक्सप्लेन कि ट्रूथ सीकिंग मीडिया इज अ शैम। बिल्कुल मैम, ट्रूथ सीकिंग तो नहीं, वो तो ट्रूथ ड्रिवन नहीं है, प्रॉफिट ड्रिवन होता है, और पॉलिटिकल अपने जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, वेस्ट पॉलिटिकल एफिलिएशंस एंड वेस्टेड इंटरेस्ट वर्क, ऑल राइट। जो शुरू में कॉन्सेप्ट उसने कहा था, द वे वी व्यू द वर्ल्ड इज पार्ट ऑफ प्रोपेगेंडा, तो उसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? अभी जैसे हमने इसके ट्रूथ सीकिंग के लिए तो हमने मरियम नवाज की एक रीसेंट एग्जांपल उठा के डिस्कस कर लिया ना, जो अर्लियर कॉन्सेप्ट था उसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? सो अगर आप उसको भी किसी इवेंट से, जैसे जस्ट नाउ आई सेड लिंक इट टू एन इवेंट, आपने मरियम नवाज के साथ लिंक किया, सो बेसिकली उस अर्लियर को कैसे लिंक करेंगे? 9/11 को द वे वी सी द वर्ल्ड इज पार्ट ऑफ प्रोपेगेंडा। 9/11 को एक्सप्लेन कर दें ताकि मुझे समझ आ जाए कि आप 9/11 को ऑल राइट। सो इफ यू आर ट्राइंग टू से कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर या 9/11 के जो इंसिडेंट्स हैं और उसकी वजह से मुसलमानों की एक इमेज क्रिएट हो गई एज अ टेररिस्ट, सो इफ यू आर ट्राइंग टू से दैट मोस्ट ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड स्टार्टेड लुकिंग एट मुस्लिम्स एज टेररिस्ट द वे वी सी द वर्ल्ड, सो वी तो फिर रिड्यूस हो गया ना, वी इज रिड्यूस टू वेस्टर्न पॉपुलेशन और एंटी मुस्लिम और नॉन मुस्लिम पीपल, जो आप वी को कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इफ एज अ मुस्लिम आई एम स्टैंडिंग ऑन फॉर एग्जांपल न्यूयॉर्क एयरपोर्ट, तो बेसिकली आई विल हैव टू फेस कॉन्सिक्वेंसेस जो आप कह रहे हैं कि टेररिस्ट की जो इमेज है फ्रॉम अ टेररिस्ट कंट्री, तो उस तरीके से वो उसके ऊपर इम्पैक्ट करेगी, ये कह रहे हैं आप? ऑल राइट, सो आपने वी, मैं आपसे व्हाट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड कि इस जगह पे आपने वी को स्प्लिट कर दिया ना, द वे वी सी द वर्ल्ड। तो ये एग्जाम्पल आपकी ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि एग्जाम्पल आपकी गलत है, बट आई एम टेलिंग यू कि इस एग्जाम्पल में आपने वी को स्प्लिट कर दिया है, बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट वेस्टर्न ब्लॉक एंड नॉन वेस्टर्न ब्लॉक, और मुस्लिम और नॉन मुस्लिम ब्लॉक्स की बात कर रहे हैं आप। जी भाई, आप वी को अगर आप कलेक्टिवली देखना चाहें तो फिर आपको इस इतनी एक्सट्रीम एग्जाम्पल से हट के कोई और चीज ढूंढनी पड़ेगी। जी वो कैसे बेहतरीन है मलाला की? ओके, सो यू थिंक कि पाकिस्तानी जो है वर्ल्ड मलाला को दे रही है नोबेल प्राइज, और पाकिस्तानी समझते हैं कि मलाला इज फेक। मलाला को, इन अदर वर्ड्स यू आर सेइंग कि मलाला इज अ क्रिएशन ऑफ वेस्टर्न थॉट एंड वेस्टर्न मीडिया फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये कह रहे हैं आप? ऑल राइट, सो आई थिंक कि जब से मलाला की एक इमेज क्रिएट हुई है, ये दूसरी इमेज शुरू से ही मौजूद है, बिकॉज पीपल हैव बीन सेइंग कि अकेली मलाला नहीं थी, देयर वर लॉट्स ऑफ अदर पीपल ऑल्सो या अदर गर्ल्स ऑल्सो जो कि इस मौजू पे, इस टॉपिक पे बात करी थी, विमेन्स एजुकेशन पे, लेकिन मलाला बिकेम वेरी प्रोमिनेंट, ये कह रहे हैं ना आप? कि आई कैन अंडरस्टैंड कि ये चीज़ तो पहले दिन से मौजूद है, क्योंकि जिस दिन मलाला का इंसिडेंट हुआ था, आई थिंक विद इन दैट वीक ऑनलाइन ऐसी इमेजेस आ गई थी जिसमें यू कुड सी पाकिस्तानी आर्मी सोल्जर्स जो कि मलाला यूसुफजई को प्लेन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, एंड दे सेड एंड देयर वर कमेंट्स सच एज कि ये सारा का सारा फेक है। तो फिर आई वुड से कि
एवरीडे लाइफ में से देखें, द वे वी ड्रेस, फॉर एग्जाम्पल मेरा ये जो कोट है, ये आपको पता है कि ये पाकिस्तानी रूटीन का ड्रेस नहीं है, ठीक है, और इस किस्म की बेशुमार एग्जाम्पल्स। अंग्रेजी बोलना हमारे यहाँ ये बात, वी लाइक टू बिलीव कि जो लोग अंग्रेजी बोलते हैं या अंग्रेजी पढ़ते हैं वो क्रिटिकल थिंकिंग ज्यादा स्ट्रांगली करते हैं, ऐसा है। लॉट्स ऑफ पीपल ट्राई सेइंग कि जी मेरा ये मानना है, एंड आई वाज सरप्राइज्ड because this was coming from the top most person of a mini university of Pakistan, national institutions हैं पाकिस्तानी, तो मेरा ख्याल है कि 30 इंस्टीट्यूशंस की लिस्ट है जो नेशनल इंस्टीट्यूशंस कंसिडर किए जाते हैं पाकिस्तान में। वैसे तो नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन 30 फेडरल इंस्टीट्यूशंस और टॉप मोस्ट बंदे के मुंह से कि जी मेरा ये मानना है कि जो लोग मैं अपने बच्चों से मैंने कहा कि अंग्रेज़ी बोला करो, बिकॉज मेरा ये मानना है कि जो अंग्रेज़ी बोलते हैं वो बेटर क्रिटिकल थिंकर्स होते हैं और वो इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग होते हैं। तो आई वॉज टोटली सरप्राइज। तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ वर्ल्ड व्यू जिसकी वजह से एवरीबडी वांट्स कि जी मेरा बच्चा अंग्रेजी स्कूल में जाए। आप अपना बच्चा डालेंगे कहीं और? नहीं डालेंगे, आप पब्लिक सेक्टर स्कूल्स में नहीं डालेंगे। दैट्स अ वर्ल्ड व्यू। जी जी, वर्ल्ड व्यू बन गया ना। आगे आपको मिलती नहीं है ना, वो आगे आपको मैट्रिक्स बोलना पड़ता है, वो जो भी होते हैं वो खत्म हो जाती है क्वेश्चन को उर्दू में जो भी कह रहे होते हैं। देखिए मैंने आई ट्राइड कि सबीन मैट्रिक करे, बट सबीन वाज वेरी अपसेट। उसने कहा नहीं मैं वो लेवल करूंगी। मैं उसको मैट्रिक और एफएससी साइड पे इसलिए ले जाना चाह रही थी बिकॉज वी लिव हियर। और वो आपकी बात अपनी जगह ठीक है, अपनी जगह ठीक है कि वो वैसे ही मैंने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में डाला, दोनों शोइफात में थे। शोइफात से देन दे मूव टू बीकन हाउस स्कूल सिस्टम। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि मेरी तो कभी भी चॉइस नहीं थी कि मैं अपने बच्चे पब्लिक सेक्टर स्कूल में डालूं। बट व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से कि दिस बिकम्स द वर्ल्ड व्यू। वर्ल्ड व्यू की एग्जांपल मैं आपसे कही थी कि एवरीडे लाइफ से उठाएं। एवरीडे लाइफ के पूरी पाकिस्तानी पॉपुलेशन का, मेरी फॉर इंस्टेंस जो मुलाजमा है उसकी बच्ची इस वक्त 2-2.5 साल की है और बेटा उसका कोई 8-9 साल का है। सुबह स्कूल जाते हैं टेक सोसाइटी के, शाम को वो बच्चे, वो अभी कह रही थी 2.5 साल की बच्ची को मैं सोच रही हूँ ट्यूशन पे डाल दूँ। तो मैंने पूछा 2.5 साल की, देखिए ना उसकी, अब आई एम लुकिंग एट दिस के दोनों मियाँ बीवी मिल मिला के 30-35 हद से हद 40,000 कमा लेंगे, इससे ज्यादा क्या कमाएंगे? यही लिमिट है ना होम वर्कर की। घर पे जो औरत काम कर रही है या उसका मियाँ ड्राइवर है, तो दोनों की कलेक्टिव सैलरी जो है वो 40 को शायद ही एक्सीड करे। ठीक है, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि वो अपने एक्सपेंसेस को ये ट्यूशन और इस किस्म की चीज़ों में डिवाइड कर रही है बिकॉज शी वांट्स कि उसके बच्चे अंग्रेजी सीखें और अंग्रेजी पढ़ें। सो दिस इज जो आपसे वर्ल्ड व्यू एंड प्रोपेगेंडा की मैं बात कर रही थी। आई सेड कि एवरीडे लाइफ से उठाएं कि अ कंट्री और पीपल स्टार्ट बिलीविंग कि हमारी लैंग्वेज इंफीरियर है। हमने द मिनट वी स्टार्ट बिलीविंग कि आगे जाके प्रॉब्लम्स होंगी मैट्रिक में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, हम अपनी लैंग्वेज को इंफीरियर समझ रहे हैं। लेकिन मुझे ये नॉलेज जो है ना, मैं वो इंग्लिश में है। आखिर आपने ये मान लिया ना कि नॉलेज अंग्रेजी में है। यस, बिकॉज वट एवर आई एम प्रोड्यूसिंग, आई एम नॉट प्रोड्यूसिंग नॉलेज इन माई ओन लैंग्वेज। सो दिस इज पार्ट ऑफ वर्ल्ड व्यू। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि हमारे यहाँ वर्ल्ड व्यू जो प्रोपेगेंडा, इट्स पार्ट ऑफ प्रोपेगेंडा, जिसकी वजह से पाकिस्तानी लैंग्वेज पीछे रह गई ना। हमारा बेशुमार उर्दू लिटरेचर बहुत ज्यादा है। यू आर क्लेमिंग कि यू आर उर्दू स्पीकिंग। पंजाबी लिटरेचर बहुत ज्यादा है। सिंधी ने, जो मैंने आपसे पहले भी कहा कि जो सिंधी फिल्म है वो इन रिएक्शन टू गवर्नमेंट्स डिसीजन आई थी जिसमें गवर्नमेंट ने प्रोविंशियल आइडेंटिटीज खत्म कर दी थी पाकिस्तान में, वेस्ट पाकिस्तान में, कि जो 4 सूबे के बजाय यू विल बी 1 यूनिट, मोहम्मद अली बोगरा ने।
ऑलमोस्ट सारी जो बात वही चली गई ना, वर्ल्ड व्यू पे चली गई कि इंग्लिश की सुपीरियोरिटी इतनी एस्टेब्लिश हो गई है. एंड व्हेन आई गेट अ स्कॉलरशिप और यू गेट अ स्कॉलरशिप टू स्टडी अब्रॉड, यू रिटर्न एंड प्रोड्यूस लिटरेचर इन इंग्लिश लैंग्वेज. अब आप ये देखें, मैंने आपसे बार बार कहा है कि व्हेन आई एम ट्रेन टू प्रोड्यूस लिटरेचर इन इंग्लिश लैंग्वेज, उनको ट्रांसलेशन की कॉस्ट खत्म हो गई उनकी, बिकॉज आई प्रोड्यूस्ड इट इन इंग्लिश लैंग्वेज. हमने उनकी कॉस्ट कटिंग कर दी ना, और हमने अपनी कॉस्ट इंक्रीज कर दी, बिकॉज वट एवर आई एम राइटिंग, मोस्ट पाकिस्तानी पीपल डू नॉट नो वट आई हैव रिटन एंड दे विल नेवर नो वट आई हैव रिटन. तो उनकी नॉलेज तो वहीं रह गई. लिटरेचर इज प्रोड्यूस्ड इन इंग्लिश. सो बेसिकली बात जो थी वो प्रोपेगेंडा की थी. मैंने आपसे कहा था कि अभी तक नोएम चॉम्स्की ने जो कॉन्वर्सेशन की है या उसके हवाले से जो कॉन्वर्सेशन हो रही है, उसको आप प्रोपेगेंडा से कैसे लिंक करेंगे? बिकॉज सुपीरियोरिटी ऑफ इंग्लिश इज एस्टैब्लिश, जिसको वेस्ट ने, नॉर्वे ने, जर्मनी ने, फ्रांस ने बहुत स्ट्रांगली क्या किया? हाँ, उन्होंने नहीं होने दी अपनी कंट्री में अपनी लैंग्वेज खत्म. ठीक है, पाकिस्तानी तो आप टेक्सटिंग को उर्दू को अंग्रेजी में लिख के भेजते हैं. सो थ्रेट हमारे लिए ना. सो वर्ल्ड व्यू. All right, so I will be playing from here, please. Chomsky has devoted his life to questioning Western state power, that the mass media brainwash under freedom. Mass media, पूरा सेंटेंस क्या था? All right. अब इस कॉन्सेप्ट को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? कह रहा है कि फ्रीडम भी फ्रीडम है. लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है फ्रीडम, और काम क्या हो रहा है? ब्रेन वॉशिंग. It's not only freedom of speech, it's also freedom to be what I want to be. As a woman, for example, or as a young Pakistani, right? कि जी मुझे इन सब चीजों की फ्रीडम चाहिए. और अगर पाकिस्तानी मुस्लिम ये सिखाता है कि शराब नहीं पीनी, आप तो कह रहे हैं कि फ्रीडम टू बी व्हाट आई वांट टू बी, फ्रीडम टू डू व्हाट एवर आई वांट टू डू. कि रात 3 बजे लड़की को अगर जाना है तो जाए फिर, राइट? तो सारी फ्रीडम हो गई ना. ब्रेन वॉश, कि वो उसको कह रहा है कि आप ये देखें कि वो जितने भी कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं उन सारे कॉन्सेप्ट्स को वो उल्टा कर रहा है. हर कॉन्सेप्ट को उलट रहा है ना, दूसरी साइड उसकी दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जिस चीज को आप फ्रीडम कह रहे हैं, दैट इज ऑल्सो ब्रेन वॉशिंग. जी, किसी चीज को भी, फिर तो आप किसी चीज को भी कह देंगे. इवन औरत मार्च विल बिकम पार्ट ऑफ दैट ब्रेन वॉश. हाँ, एनीथिंग. तो वो उसको आपको सिंपली वो हर चीज को, फ्रीडम को ब्रेन वॉश के अंडर में ले जाएगा. किसी ने एक बड़ा खूबसूरत वीडियो पोस्ट किया था ड्यूरिंग बिफोर लास्ट इलेक्शंस, कि एक बिल्ली भाग रही है और उसके पीछे चूहा उसको पकड़ने के लिए जा रहा है, एंड द कैट इज स्केयर्ड. तब्दीली आई रहे. शायद आपने वो देखा हो वीडियो. इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो. और रियल कैट थी जो भागती फिर रही थी, नॉट टॉम एंड जेरी काइंड ऑफ थिंग. सो बेसिकली आप यू शुड रियलाइज कि मैंने आपसे लास्ट क्लास में आपसे ये कहा था कि दिस इज, आपको मैंने 2 चीज़ों की डिफरेंस बताने की कोशिश की थी, विच आई बिलीव नन ऑफ यू रिमेंबर्स बाय नाउ. कि अगर आप में से शायद आतिफ, आपने कहा था कि आप रिसर्च थीसिस करेंगे इवेंचुअली, या प्रोजेक्ट करेंगे. अब आपका जहन है प्रोजेक्ट. तो आई थिंक कि उमर अमीन कुरैशी वाज थिंकिंग अबाउट एट दैट टाइम, बट ही लेफ्ट. ऑल राइट. तो मैंने आपसे ये कहा था कि जब आप रिसर्च थीसिस करते हैं तो आपको एक लिटरेचर रिव्यू देना पड़ता है, और अगले कोर्स में जो आपको अब स्टार्ट करेंगे हम स्प्रिंग में, तो ये दिस इज अ काइंड ऑफ लिटरेचर रिव्यू ऑन प्रोपेगेंडा. कैन यू सी दिस? कि ये उसने लिखा, फॉर इंस्टेंस, जो आप उसको कहते हैं मेथोडोलॉजिकल रिव्यू ऑफ लिटरेचर, दैट एक्चुअली टेल्स यू कि प्रोपेगेंडा थ्योरी
कब कैसे डेवलप हुई और क्या इसमें चेंजेस आती रही ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे दिस इज ओनली टेलिंग यू अबाउट कि हाउ थियरी हैज बीन डेवलपिंग और इवॉल्विंग, राइट। और उसके बाद मैंने आपसे ये कहा था कि ये ट्रायम्फ ऑफ द विल, इफ यू कैन रिकॉल, तो दिस इज कंसिडर्ड, मैंने आपसे लास्ट क्लास में ब्रीफली इसको, Propaganda is everywhere. The word can basically be applied to any kind of media. आपको मैंने ये कहा था कि कहाँ चली गई जी। सो बेसिकली ऑल आई सेड कि ये आपका लिटरेचर रिव्यू है, ये एक वन ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्रोपेगेंडा फिल्म है, राइट। ये कहाँ पे खुली है, कहीं पे खुली तो है अभी, यही है, ऑल राइट। सो बेसिकली ये आप देख रहे हैं कि ये हिटलर का ट्राई मोटर प्लेन, और 2-3 प्लेन्स रहे होंगे इन द एयर, क्योंकि वन प्लेन हिटलर इज सिटिंग एंड द अदर प्लेन इज एक्चुअली शूटिंग। और ये मैंने आपसे कहा था कि दिस विल बिकम द लास्ट चैप्टर ऑफ रिटन थीसिस। आपको याद नहीं है बिकॉज आप तो खैर यहाँ मौजूद भी नहीं थे, बट आई थिंक शाहजेब एंड आतिफ प्रोबेबली डू नॉट रिमेंबर कि अगर फॉर इंस्टेंस इफ आई वाज सेइंग कि मैं हिटलर की फिल्म को एनालाइज करूंगी फॉर माय रिसर्च थीसिस, सैंपल में मैंने ये उठा लिया, एंड आई वाज सेइंग कि जी मैं लिटरेचर रिव्यू से स्टार्ट करूंगी ना यहाँ से। सो आई सेड दिस विल बिकम लिटरेचर रिव्यू, राइट, or second chapter, and this will become the last chapter of the thesis, right। क्योंकि लास्ट चैप्टर में पहले जब मैंने कहा कि मैं प्रोपेगेंडा थ्योरी यूज करूंगी फॉर रिव्यूइंग अ वॉर फिल्म या अ नंबर ऑफ वॉर फिल्म्स, यहाँ पे मैंने अ नंबर ऑफ वॉर फिल्म्स नहीं रिव्यू की हुई, इसमें सिर्फ 2 वॉर फिल्म्स रिव्यूड हैं, जिसमें से दोनों का ताल्लुक किसी न किसी डिक्टेटर से है, राइट। सो एक है हिटलर ऑफ जर्मनी और दूसरा है जार ऑफ रशिया, राइट। सो थ्योरी यहाँ पे है कि मैंने कौन सी थ्योरी यूज की, थ्योरी यहाँ पे है कि आई यूज्ड प्रोपेगेंडा थ्योरी, या थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जो है वो प्रोपेगेंडा थ्योरी पे बेस्ड है फॉर एनालाइजिंग फिल्म्स ऑन दीज 2 फिल्म्स, राइट, क्योंकि ये दोनों प्रोपेगेंडा फिल्म्स हैं, ओके। सो बेसिकली एक जो है आपको ऊपर लिखा हुआ भी है, पॉलिटिक्स, प्रोपेगेंडा एंड फिल्म फॉर्म, फिल्म की एनालिसिस के लिए प्रोपेगेंडा थ्योरी यूज की, और फिल्म्स का नाम है बैटलशिप पोटमकिन, जो कि जार ऑफ रशिया के बाद आइजनस्टाइन की बनाई हुई फिल्म है, और दूसरी है ट्रायम्फ ऑफ द विल 1935। सो आपसे मैंने ब्रीफली मेंशन किया था लास्ट 2 फिल्म्स में कि ये 2 फिल्म्स एक दूसरे की ये कॉन्ट्रास्ट हैं, दोनों प्रोपेगेंडा फिल्म है लेकिन दोनों कॉन्ट्रास्ट है, और एक फिल्म इंतहाई वायलेंट है और दूसरी फिल्म लिरिकल है। कैन यू रिकॉल कि मैंने कौन सी फिल्म को लिरिकल कहा था? कैन एनीवन रिकॉल? हिटलर की फिल्म लिरिकल है। जार का जो चल रहा है वो लिरिकल नहीं है, ठीक है। सो ये लिरिकल है, और अगर फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे आपको मैं डिफाइन किया, आपको दिखाने लगी हूँ, आप यू कैन टेल योर सेल्फ कि ये जो सीन है ये वायलेंट है कि नहीं है।
अब आपको वायलेंट दोबारा तो नहीं बताना पड़ेगा कि वायलेंट क्या है। पूरी की पूरी फिल्म जो है ये, इसमें कहीं भी वायलेंस नहीं है, पूरी फिल्म में कहीं वायलेंस मौजूद नहीं है। और अभी जो आप सीन्स देख रहे थे, इसके बाद जो अगले सीन्स आते हैं वो आपको स्कल्पचर्स के सीन नजर आते हैं, राइट? स्कल्पचर्स, बर्ड्स, चाहे वो स्कल्पचर की फॉर्म में हो, उसके अलावा पूरे शहर में जिस तरह पाकिस्तान में 14 अगस्त पे आप हर तरफ झंडे लगा देते हैं, तो यू वुड एक्चुअली सी कि ये फौजी जो हैं वो सिटी में परेड कर रहे हैं, एंड यू वुड सी फ्लैग्स ऑफ नाजी फ्लैग्स, स्वास्तिका के नाम से वाकिफ हैं आप? स्वास्तिका जो इस तरह की एक इमेज है, ठीक है, हाँ, इस तरह करके। सो बेसिकली यू वुड सी कि दिस कि जो सिटी है नरमबर्ग, जो इस सीन में प्रॉपरली आपको नजर नहीं आ रही थी, लेकिन वो पूरी की पूरी सिटी जो है, नरमबर्ग सिटी जो है, वो फ्लैग से भरी पड़ी है। और ट्रायम्फ ऑफ द विल ओपनिंग सीन्स ऑन, ये डायरेक्टर है लेनी रिफनस्टाल। ये आपको, आई थिंक शी लिव्ड अबाउट 102 years। इसकी अभी डेथ ज्यादा पुरानी नहीं है। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान शी वॉज वेरी यंग एंड शी वॉज डायरेक्टर ऑफ द फिल्म। 34 कैमरास पे डॉक्यूमेंट्री फिल्म शूट हुई। ये है स्वास्थ्य, देख रहे हैं आप? हाँ, पूरी की पूरी फिल्म में फेस्टिविटी, फेस्टिवल पता है ना किसको कहते हैं, राइट? पूरी की पूरी फिल्म का एक ही मोड है, फेस्टिविटी। वॉर की तैयारी है लेकिन फेस्टिविटी। सो जो मैं आपसे कह रही थी कि आप इस फिल्म को, दोनों फिल्म्स में प्रोपेगेंडा का जो एलिमेंट है, आपसे प्लीज रिमेम्बर आई सेड कि ये जो है ये रिव्यू ऑफ लिटरेचर है। इसमें सिंपली आपको ये बता रहा है कि प्रोपेगेंडा क्या चीज होता है, बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस किस तरह कंट्रोल की जाती है, मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट जो कि आप दिखा रहे हैं, यू आर मैन्युफैक्चरिंग। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट का जो लफ्ज लिखा है यहाँ पे प्रोपेगेंडा की सूरत में, आई वुड फॉर इंस्टेंस से कि जी इट्स द कंसेंट ऑफ पब्लिक कि पूरे पाकिस्तान में अंग्रेजी स्कूल ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट का हिस्सा हो गया ना, कंसेंट आपने मैन्युफैक्चर कर दी कि पाकिस्तानी पब्लिक को तो अंग्रेजी स्कूल चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट आतिर, व्हाट आई एम सेइंग कि इट वुड लुक लाइक कि पब्लिक की कंसेंट है फॉर दिस थिंग। मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट, पब्लिक की कंसेंट है कि ये पहनना चाहिए, राइट? पब्लिक की कंसेंट है कि कैसे नजर आना चाहिए, पब्लिक की कंसेंट है कि औरत मार्च होनी चाहिए, औरत को ज्यादा फ्रीडम होनी चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट, यू कैन अंडरस्टैंड कि इट लुक्स लाइक कि पीपल जनरली वांटेड। अब यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ था इससे पिछले आर्टिकल में, मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट, आई वुड से कि आपने उस ऑथर का नाम देखा था यहाँ पे? क्या था ऑथर का नाम? एडवर्ड हरमन, ठीक है? तो जब मैं इस अगले आर्टिकल पे जाऊंगी तो आई वुड से कि हिटलर हैज क्रिएटेड अ सिचुएशन और ही हैज क्रिएटेड व्हाट हरमन कॉल्स मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट। यहाँ पे आके मैं ये कहूंगी कि हिटलर की फिल्म को देख के ऐसा लगता है कि हिटलर मैन्युफैक्चर्ड कंसेंट, हिटलर मैन्युफैक्चर्ड व्हाट हरमन कॉल्स कंसेंट, राइट? कैसे? थ्रू व्हाटएवर यू वर सीइंग राइट हियर। जो आप अभी ओपनिंग सीन देख रहे थे, ओपनिंग सीन में आपको नजर आ रहा था कि हिटलर जो है वो ट्राई मोटर प्लेन से ही लैंडिंग। फिल्म में आप स्कल्पचर्स दिखा रहे होंगे, लोग दिखा रहे होंगे, पीपल हु आर स्टैंडिंग देयर एंड सपोर्टिंग हिम, सोल्जर्स हु आर स्टैंडिंग देयर विद हिम एंड सपोर्टिंग हिम, ठीक है?
तो आप बेसिकली सिंपली आप ये कह रहे होंगे कि हिटलर की फिल्म जो है वो एक नेशनल यूनिसन दिखा रही है कि पूरी जर्मन नेशन वांट्स वॉर, वर्ल्ड वॉर। जर्मन नेशन, चूंकि हिटलर के ऊपर इल्जाम है ना, वर्ल्ड वॉर 2 के लिए जर्मन नेशन को आप ब्लैक हिस्ट्री ऑफ अ नेशन कहते हैं, क्योंकि दे वर किलिंग ज्यूज फॉर एग्जांपल। और क्या कहा था आपने, शिंडलर्स लिस्ट? अगर आप शिंडलर्स लिस्ट देखें तो यू वुड नो कि किस किस्म के वॉर क्राइम्स आपको उसके अंदर नजर आ रहे हैं। फिर अगर आप जर्मनी में ट्रेवल करेंगे तो आपको वॉर क्राइम म्यूजियम्स मिल जाएंगे, प्रिजनर्स के म्यूजियम मिल जाएंगे, पूरे के पूरे बंकर्स वहां पे रखे होंगे जहां पे आप एक कमरे में ऊपर नीचे आप प्रिजनर्स को ठूस देते थे, राइट। आपको ऐसी चीजें मिलेंगी जिनमें यू वुड नो के प्रिजनर्स के ऊपर हाई टेम्परेचर बॉइलिंग वाटर में प्रिजनर को डाल के देख रहे हैं कि ह्यूमन बॉडी कितना टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकती है, या फ्रीजिंग कोल्ड में डाल के देख रहे हैं, और उस पर्पस के लिए आप प्रिजनर्स को यूज कर रहे हैं। सो जी हाँ, आप सारे एक्सपेरिमेंट्स उन पे कर रहे हैं। सो दैट वुड इवेंचुअली बिकम ब्लैक हिस्ट्री ऑफ अ नेशन, राइट। जी बिल्कुल, काफी कुछ बन चुका है, लेकिन ये जो आप अभी यहाँ पे जो आप देख रहे थे, उसको देख के आपको कहीं से भी नहीं लग रहा था कि जो कुछ वो कर रहा था नेशन उसके खिलाफ थी। आपको लगा कहीं पे कि जर्मन नेशन वाज नॉट विद हिटलर व्हाइल ही वाज डूइंग दिस? कहीं से भी नहीं लग रहा। सो यू शुड अंडरस्टैंड कि ये जो मैं आपसे कह रही थी कि लिरिकल एवरीडे टाइप ऑफ इमेजरी, जिसमें आप देख रहे हैं क्लाउड्स हैं, जहाज का शैडो अगर सिटी पे से गुजर रहा है तो यू वुड सी कि हिटलर ने पूरे शहर को अपने साए में लिया हुआ है। दैट वुड बिकम अ वेरी गॉड लाइक कॉन्सेप्ट कि वो आसमान से उतर रहा है लाइक गॉड, और पूरे शहर को उसने अपने साए में लिया हुआ है, क्योंकि ट्राई मोटर प्लेन का शैडो, जिसको आप कहते हैं ना, क्या कहते हैं, सिंबलिज्म, हाँ, सिंबॉलिक शॉट, ये है सिंबलिज्म हिटलर की फिल्म का। दैट इज व्हाई आई सेड कि फिल्म जो है आइजनस्टाइन की फिल्म के मुकाबले में दिस इज लिरिकल एवरीडे इमेजरी। और अभी फिर आपको हिटलर यहाँ पे आगे खड़ा हुआ नजर आएगा कि वो किसी जगह पे, आपने ये जो आखिर में जो सीन यहाँ पे इन्होंने फॉर इंस्टेंस जो कट कर दिए, इस सीन को इन्होंने डेवलप नहीं होने दिया इस जगह पे। आप देख रहे हैं, पब्लिक नजर आ रहे हैं, हिटलर वुड स्टॉप हियर, किसी बच्चे से को प्यार करेगा, किसी माँ से हाल पूछेगा, बच्चे उससे हाथ मिलाएंगे। सो आपको क्या नजर आएगा? यही कि बच्चा बड़ा, एवरीबडी इज विद हिटलर, एवरीबडी इज सपोर्टिंग हिटलर। तो जो मैं आपसे कह रही थी, सो हिटलर क्रिएटेड फॉर जर्मन नेशन, ही क्रिएटेड अ वर्ल्ड व्यू कि वी आर टुगेदर इन दिस वॉर। जो पीछे अभी चॉम्स्की कह रहा था ना कि वर्ल्ड व्यू इज क्रिएटेड, और वो जो वर्ल्ड व्यू उसने क्रिएट कर दिया कि, और आपसे शिंडलर्स लिस्ट शोड अ वॉर क्राइम, दिस इज शोइंग यूनिसन ऑफ अ नेशन टू कमिट दैट क्राइम। पूरी कौम उसके साथ है ना, पूरी कौम उसके साथ है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जब मैं आपसे कह रही थी कि वो आपको, और उससे पहले जो एक वो लिखा नजर आया था कि ट्रूथ इज अ शैम, राइट। सो प्रोबेबली द वर्ल्ड वाज कॉलिंग दिस अ शैम, हिटलर इज शोइंग इट एज द ट्रूथ। चॉम्स्की जो कह रहा है कि ट्रूथ इज अ शैम, राइट। सो बेसिकली देन यू वुड ट्राई सीइंग कि जी चॉम्स्की क्या कह रहा है, और डिफरेंट ऑथर्स, जो अभी हरमन का एक हमने आर्टिकल खोला हुआ था, वो क्या कह रहा है। he said manufacturing consent. So this documentary clearly consent of whole nation उसने मैन्युफैक्चर कर दी। और आपको प्रोबेबली अगर आप ये पूरा का पूरा आर्टिकल पढ़ेंगे तो यू वुड इंस्टेंटली नो कि लेनी रिफेनस्टाल जो है, जब उसको अरेस्ट किया फॉर मेकिंग दिस डॉक्यूमेंट्री, वो तो अरेस्ट हो गई ना जब जंग खत्म हुई और हिटलर डिसअपियर हो गया, तो लेनी रिफेनस्टाल वाज अरेस्टेड बिकॉज शी वाज स्टिल देयर। नोबडी नोज कि हिटलर कहाँ गया, बट एवरीबडी नोज कि लेनी रिफेनस्टाल कहाँ है, बिकॉज आई सेड कि अभी हार्डली चंद साल हुए हैं उसकी डेथ को, 102 years जो औरत जिंदा रही,
लेनी रिफेंस्टाल से वॉर क्राइम से तो वो फॉर कमिटिंग दिस क्राइम फॉर मेकिंग अ डॉक्यूमेंट्री दैट शोज मैन्युफैक्चर्ड कंसेंट ऑफ पीपल एट लार्ज, द होल वर्ल्ड नोज कि जर्मन नेशन जो है वो ये जंग लड़ेगी, और जर्मन नेशन लुकिंग एट वॉर क्राइम्स, तो आप उसको कि आप एक्चुअली क्या कर रहे हैं, ठीक है। वर्ल्ड व्यू वर्सेस जो मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट था ना, ये क्या लिखा भाई यहाँ पे, ट्रायम्फ ऑफ द विल कंस्ट्रक्ट्स एंड सपोर्ट्स द नेशनल विल। अपनी नेशन के अभी जो बुराल हो रहा है, अपनी फाइट दिखा रहा है, आप हो रहा है कि हम सब आप देखिए कि हमारे पॉलिटिशियंस जब सीट्स नहीं जीतते प्रॉपर मेजोरिटी, तो वो अपनी अपनी वो मेजोरिटी दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं ना कि जी मेरे पास इतनी सीट्स है, मेरे पास ये है। वो सिंपली ये कह रहा है नेशनल विल, कि हिटलर इज कंस्ट्रक्टिंग कंसेंट, हिटलर इज क्रिएटिंग नेशनल विल। जो यहाँ पे इस आर्टिकल में हरमन मेंशन नहीं है, लेकिन बात इसने भी वही कही है जो उसने कहा था मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट, क्योंकि आपने नेशनल विल क्रिएट कर दी। द होल नेशन इज टुगेदर फॉर कमिटिंग फॉर वर्ल्ड वॉर 2, क्योंकि ये 1934 की फिल्म है, सो यू वुड नो कि वर्ल्ड वॉर 1939 में स्टार्ट हुई थी, 4 years लेटर, ठीक है। तो यू कैन सी कि ये आपको फिल्म क्या कर रही है, एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि वॉर, नेशनल विल फॉर वॉर अंडर अ सरफेस कैरेक्टर ऑफ ट्रैंक्विलिटी। इतनी लिरिकल फिल्म, आपको लिरिकल इमेजरी, बर्ड्स, स्कल्पचर्स, बच्चे, माएँ, और हिटलर जो है वो परेड को भी विजिट कर रहा है, पूरे शहर को विजिट कर रहा है, पूरा शहर उसी तरह डेकोरेटेड है जिस तरह हम 14 अगस्त पे डेकोरेट करते हैं पाकिस्तान को, ठीक है। सो आपको हर तरफ जब पूरे शहर में जाएंगे तो आपको क्या नजर आएंगे, स्वस्तिका सिंबल एंड अदर सिंबल, और उसके अलावा आपको नेशनल विल के सोल्जर्स वहां पे खड़े हुए, जो इस फिल्म के 9 पार्ट्स में है ये फिल्म, मॉर्निंग, दोपहर के और फिर आफ्टरनून के, ठीक है, रात को क्या हो रहा है। 3 days आपका ये इवेंट हो रहा है, नरमबर्ग रैली 3 दिन के लिए, ठीक है। सो फॉर 3 days यू आर कॉन्स्टेंटली वॉचिंग दिस काइंड ऑफ इमेजरी कि हिटलर ये शहर में एंटर हुआ, एंड फॉर 3 days उसने जितने कल्चरल इवेंट्स या सोल्जर इवेंट्स, तो बेसिकली यू कैन से कि ट्रायम्फ ऑफ द विल जो है वो 9 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम, 3 days 9 चैप्टर्स बन गए ना, और उसी पे फिल्म इसी लिरिकल इमेजरी के साथ खत्म होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप इस पे जाते हैं बैटलशिप पोटमकिन पे, तो यू वुड सी कि ये फिल्म जो है ये 5 चैप्टर्स के ऊपर है। 5 इन द सेंस कि इसका फर्स्ट मेजर इवेंट जो है वो म्यूटनी ऑन द शिप है, जिसपे अगर आप वो भी आपको यहाँ पे, आई वंडर कि इन्होंने ट्रायम्फ को तो यूट्यूब से हटा दिया है, whoever is managing the budget इस किस्म की हरकतें करेंगे तो फिर तो यही लगेगा ना कि ये एक ऑर्डिनरी पब्लिक चैनल नहीं है, इट्स डेफिनेटली सुपरवाइज चैनल इसके पीछे जिसकी भी जो भी इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि अगर ट्रायम्फ इस पे से गायब हो गई है तो किसी वजह से गायब हुई होगी, ठीक है। आपसे मैंने कहा कि बैटलशिप पोटमकिन, आप देख रहे हैं यहाँ पे मुख्तलिफ नाम आपको नजर आ रहे हैं, ये नजर आया, और उसके अलावा म्यूटिनी अगर आप लिखेंगे, आई सेड कि म्यूटिनी जो है वो सबसे पहली थी इसमें, राइट। सो म्यूटिनी वाला जो पार्ट है, द म्यूटिनी, ये इसका फर्स्ट चैप्टर है जिसमें आपको मैं ये पूरा यू कैन सी कि ये जो आपको कैप्टन शिप पे नजर आ रहा है, और शिप्स पे यू वुड नो कि जो नेवल ऑफिसर्स हैं फॉर मंथ्स एंड मंथ्स कहाँ होते हैं, सी में, राइट। तो अब अगर वहां पे इनके पास वो ही इज इंसिस्टिंग के पीपल ईट फूड, यहाँ पे वो उसको यहाँ पे नजर आ रहा होगा आपको कि व्हेन ही इज इंसिस्टिंग दे शुड ईट फूड, तो उसके अंदर आपको इंसेक्ट्स नजर आ रहे हैं बहुत ज्यादा, एंड ही इज सेइंग कि यू हैव टू ईट दिस। आपको अगर आपको थोड़ा सा आइडिया है तो यू वुड नो कि फौज के तो बड़े सिंपल रूल्स होते हैं, आपको जो हुक्म मिला है वो आपने करना है, इसके अलावा कुछ है जो आपको इंस्ट्रक्शन है आप वही फॉलो करेंगे ना।
सो यू कैन सी कि हालांकि ये अभी हम कहते हैं कि अभी BC से कि जी रशिया में हम कौन से रिलीजन की बात करते हैं बाय द वे आतिफ जी? ये रशियन शिप के ऊपर आपको क्या नजर आया? हम तो कभी कहते ही नहीं कि रशियंस क्रिश्चियंस हैं, वी हैव नेवर सेड सो, बट इट्स वेरी सरप्राइजिंग कि ये जो 1925 की फिल्म है उसमें आपको एक रशियन शिप के ऊपर ये प्रीस्ट भी नजर आ रहा है विद क्रॉस इन हिज हैंड, ठीक है? और प्रीस्ट भी उनको ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि इट्स ओके जो म्यूटनी का है, इट्स ओके टू ईट दिस मीट जिसमें आपको इंसेक्ट्स नजर आ रहे हैं। सो दिस इज चैप्टर 1, वो ओडिशा स्टेप्स जो मैंने अभी आपको दिखाया। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये म्यूटनी वाला जो है, क्योंकि ये जो आपके सोल्जर्स हैं दे रिफ्यूज टू ईट दैट मीट, तो चैप्टर 1 जो है वो एक्चुअली फोकस करता है उसके ऊपर। तो पहले चैप्टर से 5 चैप्टर्स जो हैं वो पांचों के पांचों चैप्टर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर फिल्म, सारे के सारे चैप्टर्स, दिस इज अ वेरी वायलेंट फिल्म। सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि जो ट्रायम्फ ऑफ द विल को अगर आप कंपेयर करेंगे तो ट्रायम्फ ऑफ द विल में आपको नजर आता है नेशनल विल, आपको नजर आता है यूनिसन कि हर बंदा जो है वो हिटलर के साथ खड़ा हुआ है, जिसको आप ये कह सकते हैं। और फिर आपको ये नजर आ रहा होगा डायलेक्टिक, डायलेक्टिक का वर्ड नजर आया कि इस फिल्म का डायलेक्टिक जो है वो दूसरी फिल्म के डायलेक्टिक से फर्क है। आपसे बात करी थी मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट प्रोपेगेंडा के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इट लुक्स लाइक आप इतना प्रोपेगेंडा लगता है कर देते हैं कि लगता है कि सब लोग इसी पॉइंट ऑफ व्यू से कन्विंस्ड हैं। ओके, सो दैट इज पार्ट ऑफ प्रोपेगेंडा। उसके बाद यहाँ पे आपको एक वर्ड नजर आ रहा होगा डायलेक्टिक, जिसका मतलब बेसिकली ये है कि जो आप इमेजेस देख रहे होते हैं या जो चीजें आप देख रहे होते हैं वो एक इमेज के साथ दूसरी या एक शॉट के साथ जब दूसरा शॉट प्लेस किया जाता है, 2 शॉट्स एडिटिंग में आप 2 शॉट साथ साथ लेके आते हैं, एक आदमी के डायलॉग के बाद अगले आदमी का डायलॉग लेके आते हैं, तो इस तरह का डायलेक्टिक प्रोड्यूस हो जाता है कि लगता है कि जी ये लोग जो हिटलर की तरफ आम आदमी देख रहा है और हिटलर जो है वो बच्चे को प्यार कर रहा है, हाथ हिला रहा है, औरत से उसका हालचाल पूछ रहा है, शहर में लोगों के साथ मूव कर रहा है, सारे सोल्जर्स जो हैं वो हिटलर के साथ खड़े हुए हैं। एंड आई सेड कि जो है फिल्म ट्रायम्फ ऑफ द विल, ये अपने मूड के हिसाब से इंतहाई लिरिकल है। इसमें आई सेड कि 9 चैप्टर्स हैं, मॉर्निंग, दोपहर और शाम, राइट? तो जब आप मॉर्निंग के सीन्स देखते हैं तो सोल्जर्स क्योंकि 3 दिन के लिए शहर में कैंप किया हुआ है, वो सारी परेड्स भी हो रही हैं एंड हिटलर इज व्यूइंग ऑल दोस परेड्स और पब्लिक भी देख रही है उन परेड्स को। तो आपको सारा दिन देखते देखते आपको पता चलता है कि शाम को जब सोल्जर्स सो गए और जब सुबह उठे तो सुबह उठते ही तो यूनिफॉर्म में नहीं चले जाते ना। सो यू वुड नो कि जैसे नेवी के शिप पे आपको लोग टूथब्रश करते हुए भी मिलेंगे डॉकयार्ड पे मॉर्निंग में, तो सिमिलरली जब ये चूंकि फेस्टिव मोड है तो आपको सुबह के वक्त बिल्कुल उस तरह का एक सीन नजर आएगा जिसको हम फेस्टिविटी में कहते हैं कि जी कोई पाकिस्तानी फेस्टिवल हो रहा है, फेस्टिविटी है तो पकवान बन रहे हैं, लोग गेम्स खेल रहे हैं और सारी चीजें। तो यू वुड सी कि एक तरफ वो जिसको हम हॉट डॉग या सॉसेज वगैरह कहते हैं, सो यू वुड सी कि एक तरफ वो फ्रैंकफर्टर्स की तैयारी और बाकी सारे फूड्स की तैयारी नजर आ रही होगी। जो मॉर्निंग के सीन्स हैं उसमें आपको नजर आएगा कि सोल्जर्स जो हैं जिस तरह हम होते नहीं इस तरह करके ऊपर उछाल दिया, तो यू वुड सी कि काफी सारे सोल्जर्स ने सोल्जर्स को उसके ऊपर डाला हुआ है एक फ्लेक्सिबल उसके ऊपर शीट पे और इस तरह के ऊपर उछाला, तो आपको लगेगा कि वो ऊपर 15-20 फुट हवा में घूमता हुआ यूं करके नीचे आया एंड पीपल गेट होल्ड ऑफ हिम। तो यू वुड सी कि दैट्स व्हाई आई सेड कि फिल्म इज लिरिकल, कि आपको क्लाउड्स नजर आएंगे, हिटलर आसमान से एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर की तरह आसमान से जमीन पे उतरता नजर आएगा, पूरे शहर जो है वो उसके साए में होगा। जो आपसे मैंने सिंबलिज्म की बात की कि फिल्म हैज क्रिएटेड अ लॉट ऑफ सिंबलिज्म, और आपको कल्चरल टूर भी करता नजर आएगा, राइट? आपको नजर आएगा कि हिटलर इज लुकिंग एट ही इज व्यूइंग द परेड, ही इज लुकिंग एट वेमेन, जो सामने से इस तरह करके एक कल्चरल सा एक एलिमेंट क्रिएट हुआ है एंड ही इज लुकिंग एट देम। और वो जो यूनिसन की मैं बात कर रही थी कि पीपल आर, नेशनल विल क्रिएट कर दी फिल्म ने
राइट, कि जितने भी लोग हैं, जितने भी सोल्जर्स हैं एंड ऑर्डिनरी पीपल, बच्चा बड़ा बुढ़ा, एवरीबडी इज विद हिटलर इन दिस कॉज, ठीक है। सो जस्ट सी, ये आप देख रहे हैं कि ये फिल्म का एक और सीन आप देख रहे हैं, प्लीज शाजिद, ओके। सो आप इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि ये आपको सोल्जर्स और नाटजी जो हाई रैंक ऑफिसर्स हैं वो आपको नजर आ रहे हैं। कोई भी आपको गन चलाता हुआ, तोप चलाता हुआ नजर नहीं आ रहा, राइट। और बेसिकली जब जी नहीं, ये कोल्ड वॉर नहीं, ये देखिए ना, ये मैंने आपसे कहा कि पूरा शहर डेकोरेटेड है, ये फ्लैग्स आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे कि ये आपको बेशुमार के ये जो सिंबलिज्म और इमेजरी, नाटजी इमेजरी, नाटजी सिंबलिज्म बहुत इसमें पावरफुली क्रिएटेड है। और ऑल यू सी इन दिस फिल्म इज यूनिसन ऑफ पीपल, यूनिसन ऑफ द लीडर, और साथ में आपको पता चलता है उस जमाने में जो शायद वॉइस प्रॉपर्ली मौजूद नहीं थी, तो आपको डायलॉग स्क्रीन पे लिखा हुआ नजर आ रहा है, राइट। और फ्यूरर विच इज फॉर हिटलर एक्चुअली, राइट। तो ही इज व्यूइंग द परेड बेसिकली, यहाँ पे जो आपको सीन नजर आ रहा है। और कुछ और सीन्स जो मैं आपको, आई वाज लिटरली ट्राइंग टू सी, आप देख रहे हैं बाजों वाला बैंड भी है साथ में, और ये आपको you would realize कि soldiers भी हैं और public at large। so पूरी फिल्म में lyrical imagery में unison is the most prominent element, जो आपको manufactured consent, एक जिसको वो world view of manufactured consent, not for German nation, German nation is only showing their unison, right। सो आपसे मैं बेसिकली यही कह रही थी कि दिस इज हाउ देन प्रोपेगेंडा इज क्रिएटेड। और शायान, आप चूंकि मुझसे कह रहे थे कि आप फाइनल को प्रोपेगेंडा फिल्म पे क्रिएट करना चाहेंगे, तो मैंने आपसे क्वेश्चन मेरा जो था वो यही था कि राइट नाउ मैंने क्लास के शुरू में भी आई शोड अ सीन जो कि फिल्म के सीन के हवाले से कि हिटलर क्लाउड्स में से ट्राइमोटर प्लेन पे बैठ के उतर रहा है एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर की तरह, और बाद में शहर को परेड कर रहा है। तो आई एम डिस्कसिंग फिल्म सीन्स टू शो प्रोपेगेंडा एंड टू डिस्कस हाउ द डायलेक्टिक इज क्रिएटेड, वन शॉट विद अनदर, दैट जितने भी शॉट्स हैं वो सिर्फ एक ही डायलेक्ट आपसे कर रहा है कि द जर्मन नेशन इज टुगेदर विद हिटलर, ठीक है। सो हमें ये पता चलता है कि ह्यूमन हिस्ट्री मैनिपुलेट नहीं करती। आपने जो दिखाया हिटलर वॉज, अगर आप फिल्म के क्रेडिट्स देखेंगे तो हिटलर का नाम आपको प्रोड्यूसर की जगह पे नजर आएगा। सो प्रोबेबली इफ यू डिड नॉट नो कि वो फिल्म मेकर या प्रोड्यूसर का उसका कोई क्रेडिट है, तो दिस फिल्म एक्चुअली टेल्स यू कि हिटलर अपीयर्स एज प्रोड्यूसर ऑन दिस फिल्म, राइट। और जिसका मतलब है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड फिल्म है, पाकिस्तान में ISPR स्पॉन्सर करता है फिल्म्स, राइट। सो दिस इज अ स्टेट स्पॉन्सर्ड फिल्म, ओके। सो जो दूसरी चीज जो मैं आपसे कह रही थी वो ये थी कि इट्स एन ओवरवेलमिंग स्पेक्टिकल। जब आप एक शॉट देखते हैं, एक शॉट के अंदर आपको जो चीज नजर आई दैट इज नोन एज थीसिस। दूसरा शॉट 2, एडिटिंग इज पार्ट ऑफ शॉट 1 एंड शॉट 2। तो आपको शॉट 1 में जो नजर आया हिटलर का एक सीन नजर आया शॉट 1, राइट। दैट इज अ थीसिस स्टेटमेंट कि हिटलर अपने शहर को देख रहा है, लोगों को देख रहा है, राइट, एंड दे आर स्टैंडिंग विद हिम। दूसरे शॉट आपने दिखाया, एक शॉट में हिटलर दिखाया, दूसरे शॉट में बच्चा दिखाया शेकिंग हैंड विद हिटलर। और तो इसका मतलब ये है कि हिटलर का एक थीसिस स्टेटमेंट था और दूसरा जो शॉट है वो एंटी थीसिस। वो बच्चा हिटलर को देख के खुश हो रहा है, या औरतें बच्चों को देख के, या जनरल पब्लिक उसको देख के हाथ हिला रही है, राइट। सो एक शॉट को आप कहेंगे दिस शॉट इज मेकिंग अ थीसिस स्टेटमेंट, उसका एंटी थीसिस कि दूसरा शॉट क्या दिखा रहा है कि पब्लिक इज हैप्पी टू सी हिटलर। दोनों का कंबाइंड मीनिंग क्या हुआ? कंबाइंड मीनिंग ये हुआ यूनिसन, जर्मन नेशन इज विद हिटलर फॉर दिस
वॉर, ठीक है, थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस, दोनों का जो कंबाइंड मीनिंग है उसको आप सिंथेसिस कहेंगे, एंड दैट इज हाउ डायलेक्टिक इज क्रिएटेड। समझ में आ गया कि फ्रॉम एडिटिंग पॉइंट ऑफ व्यू कि शायद आई थिंक आप लोगों से तो मैंने नहीं डिस्कस किया, आई वाज डिस्कसिंग इन अनदर क्लासरूम, कि अगर एक शॉट में आपने एक आदमी को दिखाया और दूसरे शॉट में आपने एक सूप का बॉल दिखाया, तो दोनों शॉट्स का जो सिंथेसाइज्ड मीनिंग होगा वो शायद हंगर होगा, भूखा है ना, आप सूप दिखा रहे हैं। अगर आपने आदमी की के बाद अगला शॉट दिखाया कॉफिन में एक डेड बॉडी पड़े हुए, तो फिर थीसिस स्टेटमेंट होगी अ मैन, कॉफिन एंटीथीसिस, और सिंथेसाइज मीनिंग होगा ग्रीफ, कि आप एक डेड बॉडी के पास खड़े होकर ग्रीफ ही कर सकते हैं। पहला सिंथेसाइज मीनिंग क्या था? भूख, हंगर। इस दफा सिंथेसाइज मीनिंग था ग्रीफ। और अगर आपने मेल के बाद वो जो सेकंड शॉट है उसके बजाय एक औरत दिखा दी जो कहीं सोफे पे लेटी हुई है फॉर एग्जांपल, तो सिंथेसाइज मीनिंग क्या होगा? परहैप्स लस्ट, राइट? तो यू कैन सी कि जो डायलेक्टिक इस तरह प्रोड्यूस हो रहा है कि पहले शॉट में क्या दिखाया, दूसरे शॉट में क्या दिखाया, तो मीनिंग्स आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। तो जब डायलेक्टिक इस तरीके से, ये एग्जाम्पल आपको मैंने सिर्फ डायलेक्टिक का मतलब समझाने के लिए कहा। तो जो बैटलशिप पोटमकिन या ट्रायम्फ ऑफ द विल है, इसमें आप देख रहे हैं कि डायलेक्टिक किस तरीके से क्रिएट हो रहा है। जो आपने ओडिशा स्टेप के, ओडिशा मैसेकर के शॉट्स देखे थे, उसमें आपको नजर आता था एक क्लोजअप, एक औरत का स्क्रीम करते हुए, उसके साथ आपको अगला शॉट नजर आता था सोल्जर्स का उनके ऊपर गन्स लेके अटैक करते हुए। तो डायलेक्टिक क्रिएट हो रहा है जिसमें आपको एक फियर और थ्रेट का एक एलिमेंट कॉन्स्टेंटली नजर आ रहा है। एंड आई सेड कि जो बैटलशिप पोटमकिन है वो एक्सट्रीमली वायलेंट फिल्म है, और जो ट्रायम्फ ऑफ द विल एज अपोज टू बैटलशिप पोटमकिन, ये आपकी वायलेंट फिल्म थी, ठीक है। ओडिशा मैसेकर, यू कुड सी कि ओडिशा कितना वायलेंट था, राइट? यहाँ ये आपको अभी भी पोटमकिन की तो कंप्लीट फिल्म नजर आ रही है आपको। अगर आप इसको देखेंगे तो यू वुड सी के 5 चैप्टर्स जो हैं फ्रॉम म्यूटिनी टिल एंड, कि जब वो उसको शिप पे कह रहे हैं कि ये मैगट्स के साथ भरा हुआ रॉटन मीट खाओ, और सोल्जर्स रिफ्यूज टू ईट दैट रॉटन मीट, और उसके बाद वो कैप्टन को भी मार देते हैं और प्रीस्ट को भी मार देते हैं बिकॉज दे डोंट वांट टू ईट रॉटन मीट। तो आपको म्यूटिनी नजर आई ना, कि फौज ने अगर हुक्म नहीं माना तो म्यूटिनी है, राइट? सो यू कैन से कि ये 5 चैप्टर्स के साथ ये फिल्म किस तरीके से चल रही है, राइट? पहले चैप्टर में ये आपको ये मैगट्स नजर आ रही, ये सॉरी यहाँ पे बड़ा क्लियर सीन था जो ये मैं आपको ये देखें कि ये मीट है, और ये सेलर्स को कह रहा है कैप्टन के ये खाओ, और साथ में उसने प्रीस्ट को भी खड़ा कर लिया जो उसको कह रहा है देयर इज नो हार्म इन ईटिंग इट। और फिर हाँ, उसने कहा कि वॉश करके खा लो, पेट तो भरना है। एंड देन यू आर अ सोल्जर, सोल्जर को तो इजाजत ही नहीं है कि हुक्म ना माने, उसको तो सिंपली ये है कि वट एवर यू आर टोल्ड यू हैव टू डू इट, राइट? सो यू कैन सी कि ये इंतहाई वायलेंट फिल्म है from point 1 to point end. It's the most powerful film, one of the most powerful film ever produced. वर्ल्ड क्लासिक्स में आती है। आपको आप देख रहे थे कि स्क्रीमिंग वुमन पूरा इतना ओवर द लाइफ साइज, स्क्रीन के साइज का फेस नजर आया था ना व्हेन दिस वुमन वाज स्क्रीमिंग, राइट? तो D.W. ग्रिफिथ ने निकाला था फिल्म को वाइड शॉट से इन वेराइटी ऑफ शॉट्स। वो जो वेराइटी क्रिएट कर दी थी वो D.W. ग्रिफिथ ने की थी, राइट? और उसके बाद यू कैन सी कि फिल्म टेक्निक कैसे डेवलप हो रही है, क्योंकि यहाँ पे भी आपको डायलॉग स्क्रीन पे लिखे हुए नजर आ रहे हैं, राइट? सो क्योंकि वॉइस मौजूद नहीं है इस वक्त तक प्रॉपर, हालांकि ये 1920s की फिल्म है ना, ऑडियो तो प्रॉपरली ऐड हुआ है, वॉइस ऐड हुई है इन 1930s। फॉक्स ने ऐड की, फॉक्स ने बड़ा काम किया ऑडियो को फिल्म के अंदर ऐड करने में। ऐसे ही कहाँ रह गया आखिर?
ओके चले हम बहरहाल हमारे पास टाइम चूंकि कम है, सो व्हाट आई विल डू कि आई विल एक्सप्लेन द क्वेश्चन पेपर। मीनवाइल आप मुझे अगर कोई क्वेश्चन है अबाउट द फिल्म तो मुझे बताइए। सो यू अंडरस्टैंड कि 5 चैप्टर्स का कॉन्सेप्ट क्या है। प्रोपेगेंडा जो है वो ह्यूमन हिस्ट्री की मैनिपुलेशन, ठीक है, ह्यूमन हिस्ट्री मैनिपुलेशन तो नजर आ गई ना, स्पेशली ट्रायम्फ ऑफ द विल के केस में। और थीसिस एंटीथीसिस और सिंथेसिस में समझ में आ गया शाहजेब? थीसिस एंटीथीसिस और सिंथेसिस का मीनिंग समझ में आ गया कि नहीं? शायान आपको समझ में आ गया व्हाट इज मेंट बाय थीसिस एंटीथीसिस एंड? जी मैम जी। ओके सो यू मस्ट नो के यहाँ पे आपको जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था कि ट्रायम्फ ऑफ द विल जो है वो क्या चीजें इंटरकट कर रही है। नाजी सोशलिस्ट इमेजरी, क्यों? क्योंकि आपको स्वास्तिका नजर आया, जर्मन फ्लैग्स नजर आए, तो यू आर सेइंग कि जी नाजी सॉरी किधर गायब हो गया और क्यों गायब हो गया? ओके सो नाजी सोशलिस्ट इमेजरी के अलावा सोल्जर्स और सोल्जर्स के साथ आपको वो तमाम चीजें नजर आ रही हैं, राइट? एनी क्वेश्चन सो फार? ओके सो बेसिकली आप सोशलिस्ट इमेजरी के साथ जब आप ये इमेजरी देखेंगे तो इसका मतलब क्या है? आइडियोलॉजी, जर्मन आइडियोलॉजी या हिटलर की जो भी आइडियोलॉजी थी वो डिटरमिन्ड था ना, हिटलर हेविली डिटरमिन्ड, तो वो कह रहा है डिटर्मिनेट आइडियोलॉजी। और उसको जब आप कंपेयर करते हैं कि आपको क्या पता चला कि you learn the value of propaganda in shaping national and international opinion, because जब हिटलर ने ये फिल्म भेजी तो ये फिल्म उसने वर्ल्ड में भेजी, the whole world saw this film, they knew कि Leni Riefenstahl has created a great spectacle। उस स्पेक्टिकल से वो सिर्फ ये बता रहे हैं कि यूनिसन, जर्मन यूनिसन फॉर द वर्ल्ड वॉर 2, और उससे पीछे आपको वर्ल्ड वॉर 2 से पहले मिले गया ट्रीटी ऑफ वर्साइलस। और ट्रीटी ऑफ वर्साइलस के आपने ट्रीटी ऑफ सुना हुआ है? ट्रीटी ऑफ वर्साइलस के बारे में, राइट? वो आप समझें कि जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया का शिमला एग्रीमेंट है, जिसको बहुत सारे लोग कहते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब शिमला एग्रीमेंट साइन किया इंदिरा गांधी के साथ, उसी की वजह से वो 92,000 सोल्जर्स, पाकिस्तानी सोल्जर जो अरेस्ट हो गए थे 1971 वॉर में, इंडिया ने फिर वो सोल्जर्स पाकिस्तान वापस भेजे बांग्लादेश के दौरान, जो हमारी लिबरेशन है बांग्लादेश की। सो यू वुड नो कि इंडियन आर्मी हैड अरेस्टेड 92,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स। वॉर वगैरह ख़राब हो गई, काफ़ी सिचुएशन ख़राब थी। फाइनली जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने शिमला एग्रीमेंट जाके इंडिया में शिमला में ये एग्रीमेंट साइन किया, जिसकी वजह से जब भी पाकिस्तान चाहता है कि यूएन इंटरफियर करे कश्मीर की प्रेजेंट सिचुएशन में और क्राइसिस में, तो इंडिया हर दफ़ा कहता है नहीं, दोनों कंट्रीज़ ने शिमला एग्रीमेंट साइन किया था कि ये म्यूचुअल डिस्कोर्स के साथ अपनी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेंगे, तो यूएन कैन नॉट इंटरफियर इन कश्मीर अफेयर्स। इंडिया का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि इंडिया कहता है कि बाकी कंट्रीज इंटरफियर ना करें, ये पाकिस्तान और इंडिया का म्यूचुअल मामला है, राइट? सो जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स है उसका भी यही मसला है कि जर्मन नेशन हैड साइंड अ ट्रीटी जिसकी वजह से उनको लग रहा था कि उनकी इंसल्ट हुई है, शेमफुल इंसिडेंट। तो दे आर जस्ट ट्राइंग टू शो कि जी हम वी आर राइजिंग अबव दैट प्रॉब्लम, और अब हम वर्ल्ड वॉर 2 करके अपने आप को उस इंसल्ट से, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स से ऊपर लेके आ जाएंगे। ओके सो आप उसको यू कैन अंडरस्टैंड कि वैल्यू ऑफ प्रोपेगेंडा, बिकॉज हिटलर इज सेइंग कि मैं जो भी कर रहा हूँ जर्मन नेशन इज विद मी, ठीक है? आपने जो पोटमकिन के सीन्स देखे, you could see how beautifully the shots were created। एक डिसेबल्ड आदमियों के इतने सारे शॉट्स थे, एक ओडिशा स्टेप्स के ऊपर मैसेकर को शूट करना, यू कुड सी कि बेशुमार लोग सीढ़ियों पे गिरे पड़े हैं और दूसरे स्टैम्पीड में दे आर डाइंग।
बच्चे का फेस आपके पाँव के नीचे कुचला गया, that is what he was shooting. Women screaming, people screaming. You can say कि Potemkin is created with the painter's eye. मतलब पेंटर क्या करता है, मोमेंट्स को कैप्चर करता है. So whatever ये कर रहा था Eisenstein was creating Battleship Potemkin like a painter, painter's eye. हाँ, दोनों डेफिनेटली क्योंकि आप देखें ना कि अगर आपको एम्प्लॉय अगर पहले तो इवन इंडिया में भी अगर आप देखेंगे तो जब नए जब स्टूडियोज बनना शुरू हुए थे तो एक्टर्स एम्प्लॉयज होते थे ना. अभी तो एक्टर्स एम्प्लॉयज नहीं है. आप मंथली तनख्वाह मुकर्रर कर देते थे कि जी आप एक्टर हैं, आपको इतनी सैलरी मिलेगी. सो बेसिकली जो चीज आप ये कह रहे हैं, आपका पॉइंट क्या था आतिफ, आपका पॉइंट क्या था? स्टेट ओन. तो बेसिकली आपको ये नजर आ रहा है ना, क्योंकि फिल्म का जो स्टार्ट है उसमें तो स्टेट ओनरशिप बहुत ज्यादा है. आपको जो वेरिटे नजर आएगा लेट 1930s में इटली में, या फिर न्यू वेव नजर आएगी अर्ली 40s में फ्रांस में, उसका कहीं ना कहीं स्टेट से ताल्लुक है, बिकॉज स्टेट इज फाइनेंसिंग फिल्म मेकिंग. पाकिस्तान में तो आज तक नहीं कर रही स्टेट फाइनेंसिंग फिल्म मेकिंग. सो बेसिकली आपसे कि आप कॉम्पोजिशन को आप देखेंगे कि पोटमकिन इज क्रिएटेड विद अ पेंटर्स आई. जो आप शॉर्ट्स में जो मैं आपसे वैरायटी की बात करी थी, फ्रॉम अ वुमन्स फेस टू अ डिसेबल्ड पर्सन्स बॉडी, एक की तो दोनों टांगे नहीं है, और वो किस रफ्तार से ओडिशा स्टेप से नीचे उतरता है विदाउट द लेग्स. आपने देखा कि वो साइड पे भी चढ़ा, स्टेप्स पे भी आया, और सिर्फ 2 बाजुओं पे उसका सिर्फ बस्ट था ना, अपर बॉडी थी, और वो जिस खूबसूरती के साथ, मतलब इमेजिन हायरिंग एन एक्टर जो कि उस वक्त तो वो परफॉर्म ही कर रहा है ना, बिकॉज ही इज रिकंस्ट्रक्टिंग इवेंट्स. लेनी रिफेनस्टाल इज नॉट रिकंस्ट्रक्टिंग इवेंट्स. लेनी रिफेनस्टाल को कोर्ट ने क्यों फ्री किया आखिर, when she was arrested for this war crime that she made this film? तो उसका जवाब ये था कि इट इज वेरिटे, मैंने क्रिएट थोड़ी किया है, इट वॉज देयर. ठीक है, द होल इवेंट वॉज देयर, नरमबर्ग रैलीज वर देयर. हम 14 अगस्त को शूट के हम 14 अगस्त से इसका रेप्लिका नहीं बना सकते. इट वॉज एन इवेंट. लेनी रिफेनस्टाल ने इवेंट शूट किया, उसने कुछ भी नहीं किया अपार्ट. हम इवेंट्स की डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे, मेरा ख्याल है इतना क्रैप होगा कि नोबडी वुड वांट टू लुक एट द इवेंट की डॉक्यूमेंट्री, सिवाय इसके कि फॉर इंस्टेंस की जी कॉन्वोकेशन की आपने एक डॉक्यूमेंट्री बना दी, कितनी इंटरेस्ट होगी. मैं अगर डिग्री ले रही हूँ तो मुझे बस उस शॉर्ट में इंटरेस्ट होगा जिसमें आई एम रिसीविंग माई डिग्री. बट दिस इवेंट कवरेज इज ब्यूटिफुल. ठीक है, सो एंड इट्स अ वर्ल्ड क्लासिक. उसको जो फ्री किया, फ्री करने की वजह यही थी कि शी सेड कि इट वाज वेरिटे. पोटमकिन इज नॉट अ वेरिटे, दिस इज अ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इवेंट्स. दोनों को आप देख सकते हैं कि दोनों प्रोडक्शंस में कितना ज्यादा फर्क है. द सेकंड इज अ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इवेंट्स. आतिफ आप आई नहीं, वैसे शायान वाज विलिंग फॉर प्रेजेंटेशन टू, तो मैंने उससे कहा कि पीपल वर नॉट देयर, सो आई स्टार्टेड डिस्कसिंग प्रोपेगेंडा बिकॉज आई वांटेड टू कंप्लीट द टॉपिक. अच्छा, दूसरी चीज जो है, आपको जो चीज रियलाइज करें वो ये देखें कि जब हिटलर यूनिसन शो कर रहा है, सोशल मेमोरी मैनिपुलेशन है. हिटलर पे तो इल्जाम है वैसे भी कि वो शायद हिप्नोटिस्ट था. कहते हैं ना लोग कि हिटलर हिप्नोटिस्ट था. हिप्नोटिस्ट तो आई डोंट नो हिम एज एन हिप्नोटिस्ट राइट नाउ, आई एम लुकिंग एट हिम एज अ फिल्म मेकर, राइट. सो उस फिल्म में जो यूनिसन नजर आ रहा है, आपको नजर आ रहा है कि पूरी सोशल मेमोरी ग्रास्प पे है. वो जो चॉम्स्की का पॉइंट था वो क्या था, चॉम्स्की इसी चीज को एक डिफरेंट तरीके से कह रहा था, जो उसमें लिखा नहीं था कि इट्स अ शैम. शैम कह रहा था ना. व्हाट आर वी सीइंग, मैनिपुलेशन ऑफ सोशल मेमोरी, क्योंकि सारी पब्लिक हिटलर के साथ खड़ी है. सारे सोल्जर्स, होल जर्मन नेशन वन देयर is standing there with Hitler. तो जिसको आप क्या कहेंगे, manipulation of social memory, because everybody, and I said के people forget के this is today known as war crime of a nation. ठीक है,
ब्लैक हिस्ट्री ऑफ अ नेशन। आपको वो जो 5 चैप्टर्स और 9 चैप्टर्स की मैं बात कर रही थी, आतिफ सो गए आप? ऑलराइट, सो बेसिकली मैं आपसे जो 5 और 9 चैप्टर्स की बात कर रही थी, उसके लिए आई वुड सजेस्ट कि यू ट्राई रीडिंग द रेस्ट ऑफ द आर्टिकल्स। आप देखें कि ये आर्टिकल बार बार मेटाफर्स की बात कर रहा है, जो कि मेटाफर्स वही हैं, नाटजी इमेजेस, नाटजी सिंबलिज्म, स्वास्तिका एक्सेट्रा। इसमें वो जो डायलेक्टिक के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इस डायग्राम पे ये आइजनस्टाइन का जो बैटलशिप पोटमकिन का डायलेक्टिक है, आपसे मैंने कहा था इट्स लाइक अ ट्रायंगल, ये आपकी थीसिस लिखी हुई है। फॉर एग्जांपल जो हमने ओडिशा स्टेप्स का सीन देखा था, सोल्जर्स एडवांस फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टेप्स, ऊपर खड़े हुए थे ना सोल्जर्स, जो हैं वो लोगों की तरफ जा रहे हैं अपनी गन्स लेके। अगले अ वुमन स्क्रीम्स, आपने देखा नहीं था इतना बड़ा फेस नजर आ रहा था उस औरत का चीखे मारते हुए। एक और में जो आपको वो जो प्रैम वाला जो सीन था कि वो माँ जो है उसके पेट में गोली लगती है, शी फॉल्स डाउन, और वो जो बच्चे का स्ट्रोलर है वो इस तरह स्टेप्स पे से नीचे करता जा रहा है। तो आपने एक शॉट में देखा सोल्जर, दूसरे में आपने वो देखा औरत को चीख मारते हुए। वन इज योर थीसिस स्टेटमेंट एंड the second shot is your antithesis. Synthesized meaning ये recognition of oppression की आप पूरी नेशन को ऑप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो आपके जार के जो लोग थे, अगर वो गन्स लेके जा रहे हैं लोगों के ऊपर, और या फिर इवन शिप का जो कैप्टन है वो कह रहा है कि ये मैगट्स वाला मीट खा लो तुम, ठीक है, तो आप ऑप्रेस कर रहे हैं ना, you can, because you are in a position that you can be oppressed, right? तो मैंने आपसे कहा था the minute you put two shots side by side, first shot is your thesis and second shot is antithesis and joint meaning is oppression. जो अगली ट्रायंगल है, this synthesized meaning becomes the thesis. ये जो synthesis था, this is the next thesis statement, और उसके आगे next antithesis, इन दोनों का फिर जॉइंट मीनिंग, ये आपका देखिए दिस वाज शॉट 1, शॉट 2, शॉट 3, और उसके बाद ये है आपका शॉट 4। लेकिन हर दो शॉट्स जो हैं टुगेदर दे आर क्रिएटिंग अ सिंथेसाइज्ड मीनिंग। दिस सिंथेसाइज्ड मीनिंग बिकम्स द थीसिस फॉर द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट थीसिस स्टेटमेंट आप ऑपरेशन से स्टार्ट करेंगे ना, आप रिकॉग्निशन ऑफ ऑपरेशन, the fight of the masses down the steps, के लोग कह रहे हैं जाके हम इनसे बात करें, masses are fighting with the soldiers के साथ, वो negotiate नहीं हो सकता ना, तो you end up in a crisis kind of situation, चाहे आप उसको civil war कहें या जो मर्जी कहें। So you can say कि जी synthesized meaning becomes the thesis statement, and then you have another antithesis and then a next synthesized meaning। आप ये देखें कि ये ऊपर की तरफ डेवलप हो रहा है। हर सिंथेसिस इज द नेक्स्ट थीसिस, every thesis statement becomes the next thesis statement. Synthesized meanings, this synthesized meaning is thesis statement. हाँ, thesis for the next one, क्योंकि तीसरा शॉट आपने दो शॉट, शॉट 1 और शॉट 2 प्लेस किया था ना, here you are placing shot 3, here you are placing shot 4, लेकिन वो जो हर शॉट्स का मीनिंग तो क्रिएट हो रहा है ना। जैसे ही आप सेकंड के साथ थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ और शॉट एडिटिंग में अगले शॉट्स डालना शुरू करेंगे, तो वो आपकी एक चीज डेवलप होना शुरू हो जाएगी ना। तो वो डेवलप जब हो रही है तो डेवलपमेंट में आपका डायलेक्टिक क्रिएट हो रहा है ना। आपसे जो मैं इतनी देर से डायलेक्टिक की बात कर रही थी, जो कि पेज 1 पे लिखा हुआ था कि डायलेक्टिक किस तरह फॉर्म हो रहा है, राइट। सो बेसिकली ये आइजनस्टाइन ने, मैंने आपसे कहा कि ही इज अ फिल्म मेकर, लेकिन इस फिल्म मेकर ने अपनी एडिटिंग की थ्योरी और डायलेक्टिक को उसने खुद एक्सप्लेन कर दिया था कि मैंने क्या किया ओडिशा स्टेप्स पे या बाकी उसके अंदर। सो दैट्स व्हाई आई सेड कि वो आजकल का फिल्म मेकर नहीं है, इज अ रशियन फिल्म मेकर ऑफ परहैप्स पास्ट सेंचुरी, कोई 100 साल होने वाले हैं। ही जस्ट सेड कि जी मैंने ये किया in terms of editing my film. So ये वाली जो फिर गायब हो गया, क्यों गायब हो गया? क्योंकि मैंने उसको डाउनलोड नहीं किया था।
ऑल राइट, सो बेसिकली आपसे जो मैं बात करी थी वो सिर्फ इतनी थी कि सिमिलर काइंड ऑफ डायलेक्टिक इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड इन जो दूसरी फिल्म है ट्रायम्फ ऑफ द विल, ठीक है। और यहाँ पे जो आइजनस्टाइन का डायलेक्टिक था उसके अगेंस्ट ये आप देख रहे होंगे ट्रायम्फ का डायलेक्टिक, ये देख रहे हैं, ये आइजनस्टाइन ने क्रिएट किया था ना, ये ड्राइंग आइजनस्टाइन की है। ये जो नीचे वाली ड्राइंग है इसमें ऑथर का कोई कमाल नहीं है, राइट, क्योंकि ऑथर ने सिर्फ इतना किया है कि जो आइजनस्टाइन ने डायलेक्टिक लिखा फॉर बैटलशिप पोटमकिन, ऑथर ने सिर्फ इतना किया, उसी तरह का डायलेक्टिक क्रिएट कर दिया फॉर ट्रायम्फ ऑफ द विल। हिटलर रिव्यूइंग द परेड, या जो भी हार्वेस्ट, मैंने आपसे कहा था फेस्टिव है, हमारे यहाँ पाकिस्तान में हम हार्वेस्ट को सेलिब्रेट करते हैं। जब हम रबी और खरीफ की बातें करते हैं हम सेलिब्रेट करते हैं। यू वुड नो कि गांव से शहर में आया हुआ आपके घर की मुलाजमा गायब हो गई, क्यों जी, जाके चावल काटने थे, ठीक है, या गंदुम काटनी थी तो सानू पूरे साल दा अनाज मिलना सी, ठीक है। सो बेसिकली अभी मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि somebody said कि पाकिस्तान इज अ कंट्री जहाँ पे कसूर में कौन बात कर रहा था, आई थिंक हया फातिमा इकबाल की मैं वो देख रही थी डॉक्यूमेंट्री, उसने अपना छोटा सा एक इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाया, टेड टॉक सॉर्ट ऑफ थिंग। उसमें ये उसके कमेंट ये था कि जी कसूर में जाओ तो आज भी पेमेंट मोड इज ग्रेन, कि आपने फसल काटी तो बाद में बजाय ये कि आपको पैसे दिए जाते आपको एक बोरी पकड़ा दी गई, right, that is your payment for work. So right now all I meant कि harvest is celebrated in a country like Pakistan right now. If Hitler is reviewing that particular harvest, तो आपका एक देखे ना इतना normal सा scene है, harvest is very normal as opposed to whatever you were seeing on Odisha steps. Odisha steps पे आप violence देख रहे थे, harvest हिटलर बजाय आपको वायलेंस वॉर की बात कर रहा है लेकिन दिखा हार्वेस्ट रहा है, वॉर की बात कर रहा है, आपको कैट नजर आएगी। बैटलशिप पोटमकिन में कैट्स के, सॉरी ट्रायम्फ ऑफ द विल में आपको स्कल्पचर्स नजर आएंगे, कैट्स नजर आएंगी, हार्वेस्ट नजर आएगा, सम अदर सॉर्ट ऑफ फेस्टिविटी, एंड दैट्स व्हाई आई सेड कि फिल्म यूजेस लिरिकल एवरीडे इमेजरी। ये आपका शॉट 1 हिटलर रिव्यूइंग, और शॉट 2 जिसमें हिटलर जो है वो पेजेंट्स से मेरा मतलब ये है कि फार्मर्स से बात कर रहा है, ठीक है। तो आपको आप ये देख रहे हैं कि डायलेक्टिक जो है वो बेसिकली ऊपर की तरफ इंक्रीज हो रहा है ना, इट्स दिस इज हाउ इट्स, हाँ, अगर आप करना चाहते हैं जरूर करें, बिकॉज पीस जर्नलिज्म भी अगर है तो दैट इज अनदर काइंड ऑफ डायलेक्टिक ना। डायलेक्टिक इज ओनली टॉकिंग अबाउट हाउ वन शॉर्ट थीसिस, short 2 antithesis, synthesized meaning, and how it develops on. As long as जो भी आप उसको एनालिसिस लिख रहे हैं या जो एनालाइज कर रहे हैं, as long as you can convince your reader or listener what you are trying to say, you are good. Peace is about win-win, कि जी ज्यूज भी हक पे हैं और जो पैलेस्टीनियन है वो भी हक पे है। आपको दोनों के दरमियान कोई ऐसी जगह ढूंढनी है कि दोनों को आपकी न्यूज देख के ये ना लगे कि ओ मेरी न्यूज इसलिए इस तरह की है कि बीबीसी तो चूंकि एंटी मुस्लिम बात शायद कर रहा है तो वो पैलेस्टीनियंस को बुरा दिखा रहा है, बल्कि बीबीसी ये नहीं कर रहा। बीबीसी इज ट्राइंग टू शो कि जी ये पैलेस्टीनियंस ने ये गलती की और ज्यूज ने ये गलती की तो एंडेड अप विद अ वॉर लाइक सिचुएशन। तो उसने दोनों की सच्चाई खोल के सामने रखी। तो पीस जर्नलिज्म दोनों को इवनली ट्रीट करेगा। हम इस वक्त तो उसकी बात, इवननेस की बात ही नहीं कर रहे। वी आर टॉकिंग अबाउट डायलेक्टिक। इट कैन बी एनी टाइप ऑफ शॉर्ट। वो ये नहीं कह रहा कि वो शॉर्ट्स आर नॉट प्लेस्ड टुगेदर विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ पीस जर्नलिज्म और वॉर जर्नलिज्म।
It is just saying that this short is about thesis and this next short is the antithesis, and these shorts together have one meaning, which is synthesis. Then synthesis becomes the thesis statement, and you have antithesis, and then it has a new synthesized meaning, and that new becomes the thesis for the third, before the third short, and it goes on and on. तो he is only talking about dialectic here कि dialectic जो है वो किस तरीके से प्रोड्यूस हो रहा है, वो बात ही नहीं कर रहा है कि दिस डायलेक्टिक का हैज एन ऑब्जेक्टिव टू क्रिएट पीस और दिस डायलेक्टिक हैज एन ऑब्जेक्टिव टू क्रिएट वॉर. This dialectic is only showing unison of a nation, national will, manufactured consent, जिसको हम प्रोपेगेंडा के जो वर्ड्स थे मैन्युफैक्चर्ड कंसेंट एक्सेट्रा. और अगर हम उस पर वापस चले जाएं तो वहाँ पे वो जो लिटरेचर रिव्यू नजर आ रहा था उसमें probably there would be many other words also, जो कि आप अभी तो हमने यहाँ से एक ही वर्ड उठाया था ना, मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट के. हाउ वर्ल्ड व्यू कैसे क्रिएट होगा? वर्ल्ड व्यू ऐसे because you have created some sort, you have manufactured consent कि most people want this, most people, it looks like that most people want it or most people presented. यहाँ पे फॉर इंस्टेंस लिखा हुआ है, ये देखें, ये लिटरेचर रिव्यू में लिखा हुआ है कि participates in propaganda campaign helpful to elite interest. Yes, in this particular case elite interest, सारे आपको जर्नल्स, मैंने आपको ये जो शॉर्ट दिखाया था यहाँ पे जर्नल्स खड़े हुए थे, ठीक है. एलीट इंटरेस्ट, अगर हिटलर खड़ा हुआ है और उसके साथ नाजी जनरल्स खड़े हुए हैं तो यू आर जस्ट शोइंग कि व्हाट इज द एलीट इंटरेस्ट राइट नाउ और व्हाट इज इट दैट पीपल वांट. तो आप सिंपली, और इवन अगर वो जो आपसे मेरी बात हुई थी कि जी अंग्रेजी जबान वाली एलीट इंटरेस्ट नहीं है, अंग्रेजी जबान एलीट इंटरेस्ट की बात है, बिकॉज एलीट वांट्स कि ये लुक होनी चाहिए, एवरीबडी शुड लुक. सारी पाकिस्तानी लड़कियां जो हैं वो अगर जीन्स में नजर आएंगी तो यू वुड एंड अप विद अ मॉडर्न लुक. एलीट इंटरेस्ट, जीन्स ज्यादा बिकेगी. अगर आप फैक्ट्री में ग्रे क्लॉथ बनाते हैं उसके बाद आप उसको हांगकांग भेज देते हैं, वहां से पतलून बन के वापस आ जाती है पाकिस्तानी मार्केट में, तो कहीं ना कहीं कोई एलीट इंटरेस्ट वहां पे हो गया ना. और अगर लोग कहेंगे कि जी हम जीन्स नहीं पहनते, हम मुसलमान हैं, जीन्स हराम है, पहली बात तो ये कि इस्लाम हराम नहीं कहता, राइट. सो बेसिकली, और अगर कोई कह देता है तो फिर इसका मतलब है देयर इज अ सर्टेन ग्रुप कंपीटिंग इंटरेस्ट ऑफ द एलीट और कंपीटिंग इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एलीट आ जाएगा, राइट. आई होप के डायलेक्टिक के पॉइंट्स क्लियर हैं. बैटलशिप पोटमकिन के 5 चैप्टर्स हैं और ट्रायम्फ के 9 चैप्टर्स हैं. वैसे तो आपको ट्रायम्फ की और बुक्स भी मिलेंगी जिसपे 9 से ज्यादा चैप्टराइजेशन कुछ स्कॉलर्स ने की हुई है.